So what is our first topic today? So we will cover up our AWS foundation. So under that our major topics are EC2, EBS and EFS. These are the couple of topics which we will cover up. ठीक है, तो we will focus on what we are exactly going to do or what are these things. So let's start with the understanding. होता क्या है जनरली एक कोई भी लेट्स टॉक अबाउट a new thing. Okay, I will start from here. So what is the cloud? A cloud is like a big data center in the company. In the company, okay, simple, this is the hardware. Okay, उस कंपनी में बहुत सारे डेटा सेंटर में रैक्स हैं होते हैं, ठीक है. ईच रैक इज़ लाइक दिस. तो उसमें पावर सप्लाई लगेगी और दे आर वर्किंग, ठीक है. इसके अंदर सर्वर्स होते हैं. आई एम जस्ट गोइंग यू वेरी सिंपल वे. ओके, तो फॉर एग्जांपल ये AWS का क्लाउड है जो उनका एक डेटा सेंटर है ऐसे बोलो, और इसमें इस डेटा सेंटर में बहुत सारे रैक्स, ये सारे रैक्स हैं. इन रैक्स में हर रैक में एक एक ऐसे मल्टीपल सर्वर्स रहेंगे. For example, this is the one server. Okay, why I'm creating this way so that you can understand. Okay, so this is the server number 1. उसी में होगा server number 2 like this. ठीक है, तो it is rack mount servers. Think about. Okay, तो ऐसे multiple servers उसमें रहेंगे. Let me create this way. Okay, now let's assume this is AWS Mumbai region. Okay, if Mumbai region में multiple उनके availability zones है, this is the one of the availability zone, very basic way. अभी इन सभी machines, these are the physical machines. अभी इसमें तुम्हारे पास for example there is 2 people are there. For example, this is the one person, name is for example Kajal. There is another person, for example company, for example XI Infotech. Both people wants to create their machines here, virtual machines here. तो काजल को एक Linux system चाहिए, तो काजल ने क्या किया, he created one EC2 instance जिसको हम EC2 instance बोलते हैं. So what is EC2? It's like a small virtual machine. So that virtual machine is running on this system. Okay, XI Infotech is also need one system, so that is also created here. Might be they are also need the Linux system. तो इनका मैं colors different कर देता so that we can understand little better way. So this is yes. So these are the 2 different servers which are running over here. So purple color is for the XI Infotech and this color is for Kajal. I just give the colors this so that you can understand. Okay, so these are the 2 people. Okay, now slowly you need more systems. Okay, for example you need, so it could be, might be here. Okay, it is another system, it can be here or here. Another system it can be here like this. Same way for XI Infotech, might be another system is running here, another system is running in this location, another system is running in this server. So into the physical it will be completely distributed. अभी इसमें multiple companies आ जाए. For example there is another person came. Okay, for example the name is Karan.
अभी करण का एक विंडोज़ मशीन है जो उसको चाहिए, उसका पूरा सेटअप विंडोज़ पे है, तो ये हो जाएगा फॉर एग्जांपल विंडोज़ मशीन। इसके लिए मैं कलर चेंज कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल ही इज़ यूजिंग ग्रीन कलर। तो इसकी भी मल्टीपल मशीन्स है, तो कोई मशीन यहाँ पे रन कर रही है इस फिज़िकल सिस्टम पे और कोई चीज़ यहाँ पे रन कर रही है। ओके, तो ये कैसे रन होती है? इट्स ऑल कॉल्ड द शेड्यूलर, मतलब वो क्लाउड का एक फीचर है जो हम लोग नहीं देख सकते, दैट इज़ इन देयर बैकएंड फीचर। जब भी आप रिक्वेस्ट करते हो तो वो देखता है, मान लो करण को एक नया ये विंडो सर्वर बनाना है, तो वो कहाँ जाएगा? तो इन जैसे ही वो रिक्वेस्ट करेगा क्रिएट, तो वो जाके देखेगा किस सिस्टम पे जगह है मेरे पास, ठीक है, मेरे पास कौन से सिस्टम पे जगह है ज़्यादा, तो माइट भी उसको यहाँ मिल गया तो वो शेड्यूलर यहाँ पे कर देगा क्रिएट। अगर उसको यहाँ पे मिलता है तो वो शेड्यूलर यहाँ पे कर देगा। दैट इज़ द बैक एंड, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। मैं सिर्फ तुम्हें इन डिटेल्स बता रहा हूँ हाउ इट वर्क्स। नेक्स्ट क्या होता है कि अभी इन कंडीशंस पे हम इसको बोलते हैं EC2 इंस्टेंस, ठीक है। तो पहला हमारा जो टॉपिक है EC2 इंस्टेंस, ठीक है। इसमें क्लाउड में हम कुछ लोग इसको वर्चुअल मशीन बोल देते हैं, AWS में हम इसको इंस्टेंस बोलते हैं, अपने तुम VMware वर्ल्ड में इसको वर्चुअल मशीन बोलते हो, राइट। इट कैन बी एनीथिंग, कुछ लोग इसको नोड्स बोलते हैं, तो यू कैन क्रिएट इट, ठीक है। सो यू कैन से एनीथिंग। या yes, okay, so can you mute? You can unmute when, because sometimes noise is coming. Yes, thank you. Okay, next is अभी ये सारे सिस्टम्स क्रिएट हो गए। फर्स्ट थिंग हम इनके बारे में बात करेंगे, ये विंडोज़ लिनक्स सिस्टम, इसको वी आर कॉलिंग इन AWS इज EC2 इंस्टेंस, जिसके बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे। ओके, सो ये क्या है? व्हाट इज EC2 इंस्टेंस? EC2 इंस्टेंस इलास्टिक, ओके, EC2 इज नॉट द VM, EC2 इज ए सर्विस नेम। हमेशा इंटरव्यू के लिए जस्ट remember this thing, elastic cloud compute. What is the elasticity? First thing you have to always aware what is elasticity. It is the level at which a system is able to adopt the workload changes by provisioning and deprovisioning the resources such that sources met the current demand as closely as possible. अभी simple example है इसका। For example, करण की एक सर्विस है जो है क्रिकेट मैच की। अगर वो उसके क्रिकेट मैच मतलब वो स्कोर दिखा रहा है, तो उसके पास 4 लोग, मतलब अभी 10 लोग देख रहे हैं, तो 2 सिस्टम्स आ रहे हैं। जैसे 1000 लोग देखेंगे 4 सिस्टम चाहिए, 5000 लोग देखेंगे तो 5 सिस्टम चाहिए, ऐसे बढ़ते जाएंगे। इसको बोलते हैं इलास्टिसिटी। बेस्ड ऑन द डिमांड, उसके एप्लीकेशन के हिसाब से उसके नोड बढ़ते जाएंगे। अगर ये बढ़ नहीं सकते, मान लो उसकी एप्लीकेशन सपोर्ट ही नहीं करती, तो इट मीन्स हिज एप्लीकेशन इज़ नॉट इलास्टिक, ठीक है। और अगर यहाँ पे हम बढ़ा नहीं सकते, फॉर एग्जांपल एक और चाहिए उसको एट ए टाइम पे, तो एक और क्रिएट हो गया। इट मीन्स कि AWS का इन्वायरमेंट इलास्टिक नहीं है, अगर नहीं बढ़ा सकते, बट AWS कॉल्ड इट इज़ इलास्टिक, ठीक है। तुम्हें जितने नोड चाहिए तुम ऑन द फ्लाई बढ़ा सकते हो, ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड द इलास्टिसिटी। अभी 3 लोग हैं, EC2 कितने इंस्टेंस है, उसमें सर्वर है, तो जब आपको ज़्यादा चाहिए तो इट विल बी क्रिएट मोर, when automatically or manually it will create more based on the traffic. ज़्यादा लोग आ गए, ज़्यादा क्रिएट हो गए, कम लोग हो गए तो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाए, जब मैनुअली डिलीट हो जाए डजेंट मैटर। तो इन सभी चीज़ों को बोलते हैं इलास्टिसिटी। अभी क्या है, AWS के पास रीजन्स एंड अवेलेबिलिटी जोन्स है। सो व्हाट इज द रीजन्स एंड अवेलेबिलिटी जोन्स? AWS फॉर एग्जांपल, अगर आप जब भी आप AWS पे लॉगिन करते हो तो आप देखते हो कि उसमें बहुत सारे रीजन्स और वो दिखाई देते हैं। लेट मी शो यू हियर, लेट मी लॉग इन टू माई अकाउंट। तो उसमें मल्टीपल रीजन, जैसे US में 2 रीजन हैं, इंडिया इज़ वन ऑफ द रीजन, ऐसे बहुत सारी अलग अलग कंट्री के अलग अलग रीजन्स रहते हैं। तो लेट मी शो यू, दिस इज़ माई ईमेल ID ZMFRTH।
पासवर्ड, यहाँ पे आप सारे रीजन्स देख सकते हो। तो यूएस ईस्ट में 2 रीजन है, यूएस वेस्ट में 2 रीजन है, अफ्रीका में एक है, एशिया में हांगकांग, मुंबई, ओसाका, सियोल, सिंगापुर, ये सारे एशिया के रीजन है। नीचे यूरोप के रीजन है, मिडल ईस्ट में है, और फिर साउथ अमेरिका में है। तो ये सारे मल्टीपल रीजन्स हैं। अंडर ईच रीजन देर इज़ अ मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन्स आर देयर। सो व्हाट इज़ द अवेलेबिलिटी जोन? उसको ये मान के चलो कि विद इन दिस इज कॉल्ड द वन अवेलेबिलिटी जोन। ऐसे उनके पास मल्टीपल डेटा सेंटर्स हैं नियर बाय लोकेशंस पे। नियर बाय जैसे मैं बात करता हूँ मुंबई इंडिया में, तो मुंबई के अंदर ही वो 3 जगह पे कनेक्टेड रहेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये देखो, ये तो आपका एक रीजन हुआ। इस रीजन के अंदर फॉर एग्जांपल ये मुंबई है, मुंबई में 3 अवेलेबिलिटी जोन है। ये बनेगा ईजी 1, ठीक है, ये होगा ईजी 2, और ये होगा ईजी 3, ठीक है। अभी पहला बेनिफिट, इन ये तीनों आपस में कनेक्टेड रहेंगे, वेरी हाई स्पीड कनेक्टिविटी। ये इसके साथ कनेक्टेड है और ये इसके साथ कनेक्टेड है, ऐसा, ठीक है, और सभी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। तो कभी भी कोई भी किसी का भी रिडंडेंसी बन सकता है। तो अभी होता क्या है, आप मतलब व्हाई इट इज़ रिक्वायर्ड, ये पहली ये तीनों आपस में जो इसकी कनेक्टिविटी है वो बहुत ही हाई स्पीड पे कनेक्टेड है। ये जो तीनों हैं कनेक्टिविटी इनकी आपस में, इट इज़ वेरी हाई स्पीड कनेक्टिविटी। जब मैं हाई स्पीड की बात करता हूँ तो इट मीन्स इट्स ए फाइबर कनेक्टिविटी। जैसे मुंबई से अगर मैं यूएस में कनेक्टिविटी करूँगा, दैट इज़ नॉट फाइबर कनेक्टिविटी, और दैट इज़ नॉट, आई कॉल इट इज़ वेरी हाई स्पीड कनेक्टिविटी। दिस इज़ द हाई स्पीड कनेक्टिविटी बिकॉज इट इज़ द लोकल नियर बाई लोकेशन। अभी इसका फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि जैसे आपका ये करण ने 3 सर्वर बनाए, एक विंडोज़ यहाँ बनाएगा, एक विंडोज़ यहाँ सर्वर बनाएगा। वाई? अभी मान लो ये उसकी एक ही एप्लीकेशन है, नहीं, तुम एक में भी बना सकते हो। प्रॉब्लम ये होता है कि अगर आप अलग में बनाओगे तो इट विल ऑलवेज बी गुड, रिडंडेंसी रहेगा। फॉर एग्जांपल ये अवेलेबिलिटी जोन डाउन हो जाए ड्यू टू एनी रीज़न, पावर फेलियर, अर्थक्वेक, वाटर, समथिंग, ठीक है, फायर, यस, तो ये आपकी एप्लीकेशन यहाँ पे भी चल रही है, ठीक है। तो आप कल को AWS को नहीं बोल सकते कि भाई AWS मेरा VM कहाँ है। वो बोलेगा भाई मैंने तो तुम्हें मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन दी है, मेरा एक डाउन है, जब आप हो जाएगा तो यू कैन यूज़ इट, बट इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम्हारी एप्लीकेशन हाई अवेलेबल होनी चाहिए, हाईली अवेलेबल। ओके, तो नेक्स्ट ऐसे उसके पास मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन डिफरेंट रीजन्स में रहते हैं। यूएस में 6 हैं, मुंबई में 3 हैं, और बाकियों में अलग अलग ऐसे ही रहेंगे। ये क्यों अलग अलग रहते हैं? क्यों यूएस में 6 क्यों और मुंबई में 3 क्यों है? क्योंकि मुंबई में बिजनेस ज़्यादा है, मुंबई में बिजनेस कम है, यूएस में ज़्यादा है, राइट। सो बेस्ड ऑन दैट कि जहाँ पे उनको ज़्यादा बिजनेस आ रहा है वहाँ पे ज़्यादा अवेलेबिलिटी जोन है, जहाँ पे कम बिजनेस है वहाँ पे कम अवेलेबिलिटी जोन है, ठीक है। जो ग्रोइंग पे है वहाँ पे ऐड करते जा रहा है। जैसे 1 साल पहले तक मुंबई में सिर्फ 2 थे, फिर उन्होंने 3 किए, राइट, बेस्ड ऑन द बिजनेस। Okay, so that is availability zones और regions। तो regions आप यहाँ पे अपने इस पे देख सकते हो easily, ठीक है ना। You no need to remember कि कितने हैं, right? Let me show you। तो यहाँ पे आप जाओगे तो you can see all the regions here, ये सारे regions हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, और सिर्फ सब नॉर्थ वर्जीनिया में 6 हैं, 6 से ज़्यादा मैंने नहीं देखे, ओके। तो बाकियों में किसी में 3 है, एवरेज 3 रहते हैं, नहीं तो उन्होंने पहले स्टार्ट किया था 2 के साथ, ओके। नाउ इट इज़ 3, मैनी प्लेसेस स्टिल आर 2, इट डिपेंड्स अपॉन रीजन टू रीजन। मैंने बोला ना, बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है, उनको कितना पैसा उसमें रीजन में स्पेंड करना है। जितना बिजनेस उनके पास आ रहा है उस हिसाब से वो लोग उस पर
स्पेंड करते हैं। ओके, ओके, ओके। नेक्स्ट इज अवेलेबिलिटी जोन्स। तो जैसे यूएस ईस्ट में 6 अवेलेबिलिटी जोन्स हैं, ऐसे अलग अलग हर रीजन में अलग अलग अवेलेबिलिटी जोन्स रहेंगे। अभी EC2 जब हम बात करते हैं EC2 क्रिएट करने की, तो हमने बात की कि ऐसे यहाँ पे हर एक, ये तो फिजिकल सिस्टम है, एक फिजिकल सिस्टम पे मल्टीपल इंस्टेंसेस क्रिएट होते हैं। इस पे 2 हैं, इस पे 2 हैं, किसी पे 3 आ जाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये मैं कॉपी करता हूँ तो ये 3 हो गए यहाँ पे। ठीक है, तो मैं एक और कॉपी करता हूँ जो यहाँ पे 3 क्रिएट हो गए ऐसे। ओके, तो डिपेंड करता है, लेकिन ये एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम पे 3 कैसे हो सकते हैं, सॉरी एक ही हार्डवेयर पे 3 कैसे हो सकते हैं, उसके एग्जांपल है हाइपरवाइज़र। जैसे आपके लैपटॉप के ऊपर भी अगर मुझे 3 डिप्लॉय करने हैं, तो व्हाट आई विल डू, आई विल यूज़ द हाइपरवाइज़र। सो मेरे पास जैसे हाइपरवाइज़र है वर्चुअल बॉक्स, ऐसे ही AWS में होता है zen। तो AWS में हर इस फिजिकल मशीन के ऊपर zen वर्चुअलाइजेशन डिप्लॉयड होता है। पर आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो zen है और कैसे वर्क करता है, क्योंकि दैट इज़ देयर इंटरनल वर्क। ठीक है, जैसे मेरे लैपटॉप में ये 6-7 VM रन कर रहे हैं। अभी मेरा लैपटॉप तो एक ही है, पर उसमें इतने सारे लिनक्स सिस्टम मैंने कैसे ऐड कर सकते हैं, थ्रू वर्चुअल बॉक्स। इट्स ए वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर इन माई लैपटॉप। ठीक है, तो सेम वे AWS के पास zen वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर है जो रन करता है। ठीक है, और टॉप ऑफ दैट जितने मैं ये VM दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है, तो ये सारे VM जो ये लिनक्स विंडोज़ बने हुए हैं, ये टॉप ऑफ हाइपरवाइज़र बनते हैं। तो याद रखने की ज़रूरत नहीं है कुछ भी, और समझने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दैट इज़ द रियली कॉम्प्लेक्स हाउ इट वर्क्स एंड अदर थिंग्स, बट येस देयर इज़ ए हाइपरवाइज़र फॉर दैट। तो ये हाइपरवाइज़र ही आपके फिजिकल सिस्टम्स के साथ वर्क या कनेक्ट करने में हेल्प करता है। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया कि मेरे सिस्टम ये उबंटू है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग अलग सिस्टम बने हुए हैं, बट मेरे सिस्टम में तो एक ही हार्ड डिस्क है, एक ही मेमोरी है और एक ही CPU है। तो ये कैसे वर्क करता है? तो दैट इज़ द रोल ऑफ द योर वर्चुअल बॉक्स मैनेजर। ये हाइपरवाइज़र जो टूल है, या ये सॉफ्टवेयर जो है, इसका ये काम होता है कि मेरे सभी सिस्टम को प्रॉपर CPU और मेमोरी मिलना चाहिए जितना मैंने असाइन किया है। ठीक है, तो सेम वे जब आप EC2 क्रिएट करते हो फर्स्ट टाइम, रिमेंबर, तो यहाँ पे जब आप लॉन्च करते हो फर्स्ट टाइम, तो आप OS इमेज सेलेक्ट करते हो, तो उसके बाद यहाँ पे CPU देते हो, कितने CPU कितनी मेमोरी उस पर्टिकुलर इंस्टेंस को मिलेगी। जैसे 1 CPU 1 GB मेमोरी मिलेगी। तो ये कौन डिसाइड, मतलब ये कैसे उसको मिलता है? थ्रू द हाइपरवाइज़र। ठीक है, तो पहले क्या होता था, ये लोग ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दिखाते थे कि इंटेल इसमें कौन सा प्रोसेसर है। जब आप सेलेक्ट करते थे तो फ्रॉम लास्ट मैनी ईयर्स आपने देखा होगा, पहले आपके पास लैपटॉप किसी के पास भी हो तो वो Pentium 3 आता था। ठीक है, Celeron प्रोसेसर आता था। ठीक है, फिर इंटेल का P4 आना शुरू हो गया। ठीक है, Pentium 4, फिर शुरू हो गया i सीरीज़, इनकी i3, i5, i7, अभी i9 प्रोसेसर। ऐसे ही सर्वर्स में भी इनकी सीरीज़ चलती है। ठीक है, जनरेशन, जैसे फर्स्ट जनरेशन इंटेल की 2006 में आई, सेकेंड जनरेशन में इन्होंने 2011 में Xeon निकाला, E3, E5, फिर थर्ड जनरेशन में इन्होंने V2 निकाला, उसका नेक्स्ट वर्जन, फोर्थ जनरेशन में V3 निकाला। ठीक है, फिर फिफ्थ जनरेशन, सिक्स जनरेशन, ऐसे मल्टीपल CPU जनरेशन चलती रहती है। दैट्स द रीज़न आपका लैपटॉप कॉस्टली होता जाता है डे बाई डे, और नए लैपटॉप मॉडल्स आते हैं विद द न्यू प्रोसेसर। ठीक है, जब भी हम बोलते हैं कि लेटेस्ट प्रोसेसर कौन सा है, जैसे लैपटॉप पे वर्क करता है वैसे ही इसके ऊपर वर्क करता है। अभी EC2 इंस्टेंस टाइप्स, तो जैसे ही हम EC2 इंस्टेंस बनाते हैं, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे आते हैं, तो पहले हम ये सेलेक्ट करते हैं टाइप। ठीक है, आपका किस टाइप का है। तो अभी आप
सोचो कि जब आपको यहाँ पे एक डेवलपर फॉर एग्जांपल करण जहाँ काजल ने मुझे बोला, ओके, कि मुझे एक एप्लीकेशन बनानी है, उस एप्लीकेशन के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे एक रिक्वायरमेंट हम लोग पूछते हैं, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट पहले आप समझ लो क्या है रिक्वायरमेंट्स। तो रिक्वायरमेंट क्या है कि एक एप्लीकेशन बनानी है, तो उसके लिए ओएस कौन सा चाहिए, ओएस के साथ उसको फॉर एग्जांपल लेट मी मेक इट बिग, तो रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी। तो रिक्वायरमेंट से पहले आपको ओएस चाहिए, तो ओएस में क्या आपके पास विंडोज़ चाहिए, लिनक्स चाहिए, विंडोज़ कौन सा वर्जन चाहिए, 2016 19 क्या चाहिए, ठीक है। लिनक्स में रेड हैट चाहिए, उबंटू चाहिए, कौन सा वर्जन चाहिए, 7 8, ठीक है, वो डिपेंड करता है। देन सीपीयू कितना चाहिए, 1 सीपीयू, 2 सीपीयू, 4 सीपीयू, मेमोरी कितना चाहिए, 8 GB, 16 GB, 20 GB, मतलब हमारे पास अलग अलग रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। माइट बी ये जो रिक्वायरमेंट है ये काजल की है, ठीक है, तो ये काजल की रिक्वायरमेंट है फॉर हर एप्लीकेशन। बट हो सकता है करण की रिक्वायरमेंट काफ़ी बड़ी हो, वो मशीन लर्निंग पे काम कर रहा है जिसमें उसको मिनिमम 16 CPU चाहिए और उसको 128 GB मेमोरी चाहिए, तो ये बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट, उसको बड़ा VM चाहिए उसका अपना उसके वर्क के लिए। तो करण के जो VMs हैं ग्रीन कलर में वो हाई कॉन्फ़िगरेशन VMs है, तो दैट इज़ कॉल्ड द टाइप्स। तो अभी यहाँ पे आप डिसाइड करते हो कि मुझे कौन सा CPU चाहिए, मेरी एप्लीकेशन के लिए मेरे पास कैसा रहना चाहिए, ठीक है, 2 CPU, 8 CPU, 16 GB मेमोरी, 32 GB मेमोरी, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें डिसाइड होती हैं, ठीक है। नीचे आते जाओगे तो डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस आर देयर। इफ़ यू सेलेक्ट फॉर एग्जांपल यू सेलेक्टेड दिस वन, okay, so this is here you can see little more details. Earlier here it was coming like which processor it is there, now they are not showing, आपकी उनकी वेबसाइट पे जाना पड़ता है। तो C5 सीरीज़ में 48 CPU, 96 GB मेमोरी, जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, फॉर एग्जांपल मैंने बोला करंट को चाहिए हाई कॉन्फ़िगरेशन, तो यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे 72 CPU, 144 GB रैम, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग हैं, 64 CPU, 128 GB रैम, तो मल्टीपल उन्होंने कम्बिनेशन दे रखे हैं। इसमें नेटवर्क स्पीड 20 GB मिलेगी, इसमें नेटवर्क स्पीड अगर ऊपर करोगे 12 GB मिलेगी, इसमें नेटवर्क स्पीड अप टू 10 GB मिलेगी, इसमें 16 CPU, 62 GB, मतलब जिसको जैसी रिक्वायरमेंट है वैसा है। जैसे आप शॉपिंग के लिए जाते हैं, हर बंदे की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है, जैसे कोई टी शर्ट में कॉलर वाली चाहता है, कोई कुछ चाहता है, तो दीज आर द टी शर्ट साइजिंग, एक तरह से किसी को मीडियम चाहिए, किसी को लार्ज चाहिए, किसी को इस कलर में चाहिए, किसी को डिज़ाइन डिफरेंट चाहिए, तो ये सभी का कम्बिनेशन उन्होंने बना रखा है, सो यू कैन क्रिएट इट। आप कोई भी अपना कस्टमाइज नहीं कर सकते इसमें, ऐसा नहीं है कि मैं ऐसा नहीं इसको ऐसे चेंज कर देता हूँ, वॉट एवर इज़ देयर यू हैव टू सेलेक्ट दैट, ठीक है। तो इन आवर प्रैक्टिकल वी विल यूज़ दिस T2 माइक्रो। T2 माइक्रो में सब फ्री टियर एलिजिबल, मतलब आपका जो अकाउंट फ्री टियर है पूरे में यही यूज़ होगा, ठीक है। तो दैट इज़ योर EC2 फर्स्टली इंस्टेंस टाइप, यस। तो उसके लिए आपको पर आवर चार्जेस पे करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल इफ़ आई सेलेक्ट अनदर वन, तो उसका जो भी चार्ज होगा पर आवर का, तो वो आपको पे करना पड़ेगा इसका T2 लार्ज का। तो इसका आपको देखना पड़ेगा इंस्टेंस CPU परफॉर्मेंस, इसका क्या कॉस्ट है क्या नहीं। इसके पेज पे जाओ तो 36 CPUs यहाँ पे, तो यू कैन सी द चार्जेस एज वेल एंड ऑल अदर इंफॉर्मेशन यू विल गेट इट हियर, ठीक है। तो आप इसको नो दैट इज़ नॉट द डॉलर, इज़ द बैंडविड्थ, ओके। तो इसका पर आवर कॉस्ट आपको इन्होंने यहाँ पे लिखा होगा, तो दैट द कॉस्ट यू हैव टू पे इट, ठीक है, ओके। तो हमें जैसे M सीरीज़ है, कंपनी में जैसी रिक्वायरमेंट, मान लो तुम्हारी रिक्वायरमेंट बड़े इंस्टेंस की है, तुम्हारी एप्लीकेशन बड़ी है, तो तुम ये यूज़ करोगी उसमें, राइट। तो मान लो तुम्हारी रिक्वायरमेंट 8 CPU की है, तो तुम इसको सेलेक्ट करोगे।
तो कंपनी उसको पे करना पड़ेगा कंपनी को, तो उसमें कोई पर्सनल अकाउंट नहीं होता ना, उसमें कंपनी पे करती है। तो बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट तुम उसकी अप्रूवल लेते हो, नहीं मुझे तो ये बड़ा इंस्टेंस चाहिए क्योंकि मेरी एप्लीकेशन में इतना लोड होगा, तो यू विल गेट द अप्रूवल एंड हाँ yes everybody is used. T2 micro is just for the training, nobody is using in the production. ठीक है ओके तो पहला होता है इंस्टेंस क्रिएट करना। सेकंड इसमें आ जाता है EMI इमेज। तो यहाँ पे अगर आप आते हो तो व्हाट इज़ द EMI इमेज। अब जैसे ही स्टार्ट करते हो सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। सो व्हाट इज़ द EMI इमेज, यहाँ पे देखिए तो ये मल्टीपल इमेजेस दे रखी है उन्होंने पहले ही। एक तरह से सोच के देखो कि EMI इमेज होता क्या है। बाय डिफ़ॉल्ट EMI इमेज लाइक कि आप एक कंपनी में ज्वाइन करते हो, उस कंपनी में आपको लैपटॉप मिलता है, राइट। एक लैपटॉप कंपनी देती है आपको, उस लैपटॉप पे क्या क्या इंस्टॉल रहता है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, स्काइप, VPN, PDF, नोटपैड, उनके जो अपने टूल होंगे वो सब कुछ इंस्टॉल रहता है, ठीक है। लेकिन ये इंस्टॉल करता कौन है, मैनुअली होता है, नहीं, ऑटोमेटेड होता है, यस। तो क्या हर लैपटॉप बार बार इंस्टॉल होता है, नो। तो करते क्या है वो लोग, तो जनरली क्या होता है कि एक इमेज बनती है। फॉर एग्जांपल इस लैपटॉप के लिए एक इमेज बन गई, ये लैपटॉप का मॉडल है डेल का, ठीक है, मान लो लिनोवो T20 या डेल है कोई मॉडल, तो उसमें ये सारी चीज़ें इंस्टॉल करके उसकी एक इमेज तैयार कर लो, ठीक है। उस इमेज को जितने मर्जी सेम मॉडल पे डालते जाओ तो आप लोगों को बार बार इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा ये सॉफ्टवेयर, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम प्लस सॉफ्टवेयर सब कुछ पहले से इंस्टॉल हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड द इमेज। तो आप एक ही इमेज से कितने सारे नए लैपटॉप इंस्टॉल कर सकते हो। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं इन केसेस में, EMI इज द सेम थिंग। जैसे इसमें रेड हैट इमेज है, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम सब कुछ इमेज में पहले ही है। नीचे आओगे तो कुछ विंडोज़ इंस्टेंसेस मैं दिखाता हूँ, जिसमें इस विंडोज सर्वर में डेटाबेस सर्वर भी इंस्टॉल पहले ही है, ठीक है। तो इसका मतलब इस इमेज, जब इन्होंने ये इमेज बनाई, इस पर ऑपरेटिंग सिस्टम डाला, उसके ऊपर SQL सर्वर डाला, तो दोनों को कंबाइन करके एक इमेज बना दी। इस इमेज को हम लोग बोलते हैं EMI। हम अपने केस में रेड हैट यूज़ कर सकते हैं, लाइनेक्स कर सकते हैं, तो मैं रेड हैट 8 यूज़ करूँगा इन मोस्ट ऑफ द केसेस, ठीक है। नहीं तो रेड हैट 7, सेंटोस, आप जो भी यूज़ करना चाहते हैं आपके कंफर्टेबल के हिसाब से आप यूज़ कर सकते हो, ओके। जब मैं रेड हैट, और यहाँ पे एक और चीज़ है, अगर आप क्लिक करते हो फ्री टियर ओनली, तो ये इमेजेस जहाँ पे फ्री टियर एलिजिबल लिखा है वही फ्री है, बाकी सभी चार्जेबल है। तो बी केयरफुल व्हेन यू आर सेलेक्टिंग, ओके। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे लिए रेड हैट कहाँ गई, यस ऑन द टॉप। सो दिस रेड हैट इज़ फ्री, अमेजोन लिनक्स इज़ फ्री, तो आप इसको किसी को भी यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने रेड हैट को यूज़ की, तो आई विल चूज़ दिस रेड हैट, यस, ओके। नेक्स्ट, तो EMI इमेज, और फिर उसकी टाइप, कितने CPU, कितनी मेमोरी वो चाहिए। देन नेक्स्ट, फिर आती है उसकी कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अभी इस कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग मल्टीपल चीज़ें हैं, हम स्लोली इन सभी चीज़ों को कवर करेंगे। पहला है VPC, ये होता है बाय डिफ़ॉल्ट नेटवर्क कि VPC का मतलब सिंपल है, इसको हम डिटेल में चैप्टर नंबर 4 में कवर अप करेंगे। तो नेटवर्क है कि हर बंदे को एक दूसरे, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे क्रिएट किए थे, यहाँ पे VM, अगर आप देखो ये सारे, अभी काजल कभी नहीं चाहेगी कि उसका जो VM है ये वाला, ये किसी और के VM के साथ टॉक करे, राइट। ये इस लिनक्स जो एक्सा इन्फोटेक का इस कंपनी का VM है, और ये कंपनी भी नहीं चाहेगी उसका जो लिनक्स VM है वो किसी और कंपनी के VM से बात करे। तो इन दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाता है, अलग अलग कैसे रखा जाता है, VPC के थ्रू। इसका VPC अलग होगा और इनका VPC अलग होगा। तो जिनका VPC अलग होता है वो एक दूसरे को ना तो देख सकते हैं, ना कोई कनेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो मैं आपका VM नहीं देख सकता, आप मेरा VM नहीं देख सकते, क्योंकि VPC डिफरेंट होगा। उसके बाद आता है कि मेरी एप्लीकेशन कौन से अवेलेबिलिटी जोन में इंस्टॉल होगी। तो आपके पास बहुत सारी अवेलेबिलिटी जोन्स हैं, इसमें जैसे 6 अवेलेबिलिटी जोन है।
आप खुद सिलेक्ट कर सकते हो कि मैं 1C में चाहता हूँ, जब मैं 1A में चाहता हूँ, राइट। अदरवाइज अगर आप सिलेक्ट नहीं करते, नो प्रेफरेंस, तब वो अपने आप सिलेक्ट कर लेता है, ओके इसको कहाँ पे इंस्टॉल करता है। तो मैं सिलेक्ट करता हूँ 1A। यहाँ पे आ जाता है सबनेटिंग अनेबल्ड, मतलब आपको एक पब्लिक IP एड्रेस मिलेगा जहाँ से आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। दिस प्लेसमेंट ग्रुप वी विल डिस्कस लेटर। आई एम या नेक्स्ट चैप्टर्स में आएंगे। शट डाउन बिहेवियर, यहाँ पे क्या है कि जब आप शट डाउन करते हो तो ये स्टॉप होना चाहिए, ये टर्मिनेट होना चाहिए। तो आप वैसे ही जैसे ही शट डाउन करोगे अभी वो स्टॉप होगा और पड़ा रहेगा, लेकिन अगर आप इसको बिहेवियर चेंज करके टर्मिनेट कर दोगे तो सेम वो टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। स्टॉप हाइबरनेट बिहेवियर, अनेबल हाइबरनेट एड एडिशनल स्टॉप बिहेवियर के उसमें हाइबरनेट इज जस्ट लाइक इट विल स्टोर ऑल द इंफॉर्मेशन इनटू द रैम। जो भी उसका रिसेंट वॉल्यूम उसका रहता है तो उस रैम में स्टोर करके रखता है। जैसे हम लैपटॉप होता है, जब आप लैपटॉप को शट डाउन करते हो तो क्या होता है, सेम पोजीशन पे वो ओपन हो जाता है। मतलब जैसे आप ओपन करोगे आपके ब्राउज़र में सब कुछ पहले से जो ओपन है वो ओपन रहता है। तो वो क्या करता है, हाइबरनेट करता है, एक्चुअली उसको शट डाउन नहीं करता जब आप उसके लिड को क्लोज करते हो। तो सेम चीज़ इसमें भी हाइबरनेट की ऑप्शन है। मॉनिटरिंग, आप करते हो डिटेल मॉनिटरिंग, मतलब आपका जो VM है इसमें कुछ एडिशनल चार्जेस एप्लीकेबल होंगे इफ़ इट इज़ यू आर सिलेक्टिंग दिस वन, बट यू विल गेट द मोर डिटेल्स, मॉनिटरिंग ज़्यादा होगी, ठीक है। और डेफिनेटली चार्जेस होंगे। बाय डिफ़ॉल्ट वो 5 मिनट्स होता है, डिटेल में वो एवरी 2 मिनट्स भी लेके जाता है। अभी टेनेंसी होती है 3 तरह से, शेयर्ड, डेडिकेटेड और डेडिकेटेड होस्ट। अभी यहाँ पे जो हम देख रहे हैं ये है शेयर टेनेंसी। सभी के VM एक ही सर्वर के ऊपर फिक्स हैं, तो दिस इज़ कॉल्ड द, जैसे इनमें दो कंपनियों के हैं, इसमें भी 2 हैं, इसमें भी 2 हैं, इसमें 2 के हैं, ऐसे मल्टीपल, इट इज़ कॉल्ड द शेयर टेनेंसी। मतलब एक फिजिकल सिस्टम पे कई कंपनियों के इंस्टेंस हो सकते हैं, VM हो सकते हैं। बट इफ़ यू सेलेक्ट द डेडिकेटेड वन, डेडिकेटेड में क्या होता है कि मान लो काजल ने बोला नहीं मेरी ये एप्लीकेशन बहुत है, मुझे तो डेडिकेटेड चाहिए, तो फिर क्या होता है कि उस पर्टिकुलर क्लाइंट के लिए एक डेडिकेटेड इंस्टेंस दे दिया जाता है। तो उसके इंस्टेंस जो भी बनेंगे उसके लिए एक डेडिकेटेड ऐसे रहेगा, लाइक दिस। तो ये डेडिकेटेड जैसे 4 है, कहाँ पे भी बनेंगे वहाँ पे वो डेडिकेटेड होंगे। मान लो यहाँ पे भी अगर बनेंगे तो डेडिकेटेड रहेगा, वहाँ पे किसी और का नहीं बनेगा। ओके, फॉर एग्जांपल इट्स क्रिएटेड हियर, तो ये डेडिकेटेड हो गया काजल के लिए, ठीक है, तीनों। बट डेफिनेटली काजल इज पेइंग मोर देन अदर्स बिकॉज डेडिकेटेड क्या होता है इंस्टेंस, वहाँ पे एडिशनल चार्जेस विल बी एप्लीकेबल, अदरवाइज यू विल चूज द शेयर्ड ओनली। इज लास्टिक इन्फेरेंस वी विल कवर अप लेटर इन द लास्ट चैप्टर दैट विल कम। ओके, तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट एक ईथरनेट कार्ड होता है। डेफिनेटली ईथरनेट कार्ड क्यों चाहिए, कनेक्टिविटी के लिए। जैसे आप अपने लैपटॉप पे वाईफाई रखते हो, पुराने लैपटॉप्स के ऊपर एक नेटवर्क कार्ड होता था, नेटवर्क कार्ड के साथ केबल अटैच होती है, तो मिनिमम एक नेटवर्क कार्ड चाहिए, राइट। तो इसमें एक बाय डिफ़ॉल्ट नेटवर्क कार्ड है। इफ़ यू वांट टू ऐड वन मोर यू कैन ऐड इट राइट नाउ। उसमें असाइन IP होगा, ऑटो असाइन, प्राइवेट IP होगा, ठीक है। अगर आप सेकेंडरी IP डालना चाहते हो तो आप खुद से भी डाल सकते हो यहाँ पर। ओके, तो ये एडवांस्ड डिटेल्स वी विल कवर अप। हम लोग जब स्क्रिप्ट बनाएंगे तो यहाँ पे स्क्रिप्ट बना के आप डाल सकते हो, जो भी स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होगी जैसे ही आपका नोड अप होगा, ठीक है। स्टोरेज, अभी आपने ये VM तो बना दिया, लाइनक्स VM, इसको स्टोरेज कैसे मिलेगा, तो इसको तो कुछ स्पेस चाहिए ना। तो ये एक स्टोरेज बन जाता है, फॉर एग्जांपल एक स्मॉल स्टोरेज जो इसके साथ फॉर एग्जांपल अटैच है, जो इस लाइनक्स सिस्टम से अटैच रहेगा ऐसे। इसकी मैं पॉइंट कम करता हूँ, अदरवाइज ओके। तो ये स्टोरेज इसके साथ अटैच हो गया, इसको बोलते हैं हम लोग रूट वॉल्यूम, ठीक है। वाई इट इज़ कॉल्ड द रूट वॉल्यूम, क्योंकि इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम, ये जो लाइनक्स हम ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हैं तो वो यहाँ पे पूरे का पूरा इसके साथ डिप्लॉय हो जाएगा। ये कितने GB का होगा ये डिपेंड करता है यहाँ पे आपने कितना यहाँ पे GB दिया, किस टाइप का होगा, ये टाइप हम नेक्स्ट चैप्टर में कवर अप करेंगे। व्हाट इज़ दीज डिफरेंट टाइप्स आर देयर, ठीक है।
इसको रूट वॉल्यूम बोलते हैं। तो ये 10 GB का रहेगा। इसका मिनिमम आयोप्स ये क्या है, ये भी हम नेक्स्ट चैप्टर में कवर अप करेंगे जब हम वॉल्यूम के बारे में स्टडी करेंगे। डिलीट ऑन टर्मिनेशन का मतलब ये है कि जैसे ही आप इस इंस्टेंस को डिलीट करते हो, फॉर एग्जांपल आपको नहीं चाहिए ये इंस्टेंस लाइनक्स, तो ये भी इसके साथ ही डिलीट, दोनों एक साथ डिलीट हो जाएंगे, ना कि ये पड़ा रहेगा। अगर आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं करते, ठीक है, इस ऑप्शन को, तो क्या होगा, ये तो डिलीट हो जाएगा, ये रूट वॉल्यूम वहीं पड़ा रहेगा आपके अकाउंट में, ठीक है, एंड इट्स डेफिनेटली चार्जेबल एज वेल। और आप लेटर ऑन अगर यूज़ करना चाहते हैं कहीं और तो कर सकते हो। अगर आप मान लो इसके साथ 2 स्टोरेज डिप्लॉय करना चाहते हो, तो यहाँ पे आप देखोगे नेक्स्ट टाइम EBS आएगा, रूट नहीं आएगा। रूट सिर्फ एक ही बार होता है जिसमें आपका ऑपरेटिंग सिस्टम डिप्लॉय होता है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक और कर दिया, तो यहाँ पे 8 GB हो गया उसका। तो 8 GB का मतलब कि ऐसे ही एक और वॉल्यूम मैंने क्रिएट किया यहाँ पे, जो इसको नाम रहेगा, मतलब बेसिक नाम EBS ही रहेगा। तो जो भी ये भी इससे अटैच हो गया, ठीक है। तो ये 8 GB का और ये 10 GB का, तो दोनों इसके साथ अटैच हो सकते हैं। यहाँ पे मेरी मर्जी है, मैं इसको सिलेक्ट ऑन, डिलीट ऑन, टर्मिनेट करूँ या ना करूँ, ठीक है। ये मेरी, अगर मैं करूँगा तो वो डिलीट होगा टर्मिनेट के टाइम पे, नहीं होगा तो नहीं होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट टैग का मतलब इसका नाम क्या देना है, नेम। तो मैंने नेम इसका फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ वेब सर्वर, ठीक है। तो वेब सर्वर नाम दिया, टैगिंग में इंस्टेंस का नाम, वॉल्यूम का नाम और इंटरफेस का नाम, नेटवर्क इंटरफेस, तीनों का सेम नाम यूज होगा, ठीक है। दैट इज द बेनिफिट ऑफ टैगिंग। सिक्योरिटी ग्रुप, अभी सिक्योरिटी ग्रुप वी विल डिस्कस इन डिटेल्स अबाउट द सिक्योरिटी ग्रुप, बट राइट नाउ आप ये सोच लो कि हमें जो भी सिक्योरिटी ग्रुप बनाना है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बना देता हूँ एक्सा सिक्योरिटी ग्रुप, ठीक है। तो मैंने ये नाम दे दिया। हम थ्रू आउट अपने पूरे प्रैक्टिकल्स में एक्सा सिक्योरिटी ग्रुप यूज़ करेंगे जब तक हम लोग फुल सब कुछ कर नहीं लेते, ओके, और इस प्रैक्टिकल तक नहीं आते। और मैं यहाँ पे बेटर आपके लिए कर रहा हूँ कि आपको इनिशियली कोई प्रॉब्लम ना आए, तो जस्ट सिलेक्ट ऑल ट्रैफिक। जब आप ऑल ट्रैफिक कर दोगे फ्रॉम एनीवेयर, डेफिनेटली इट्स नेवर रेकमेंडेड, किसी जगह पे ये रेकमेंडेड नहीं है, लेकिन आप इनिशियली आप इसको ऑल ट्रैफिक रखो। जब हम सिक्योरिटी ग्रुप कंप्लीट कर लेंगे तो फिर आप इसको चेंज कर सकते हो एट एनी टाइम, ओके। आप रिव्यू लॉन्च एंड नाउ लॉन्च इट। तो यहाँ पे आपको की सिलेक्ट करनी होगी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक न्यू की बनाता हूँ, ठीक है। तो मेरे की नेम है फॉर एग्जांपल एक्सा इन्फोटेक, कोई भी नाम देता हूँ, मैंने नाम दे दिया एक्सा इन्फोटेक हाइफन कीज़, ठीक है। तो ये डाउनलोड करनी पड़ेगी मुझे कीज़ डाउनलोड, तो ये डाउनलोड होगी कीज़ एंड लॉन्च द इंस्टेंस। अभी लॉन्च, तो मुझे यही कीज़ हर बार यूज़ करनी होगी इसको कनेक्ट करने के लिए। विदाउट, अगर ये कीज़ नहीं है तो इट्स नॉट पॉसिबल टू कनेक्ट इट। तो अभी ये देखो स्टेट अभी आ रहा है पेंडिंग। ये टाइप हमने T2 माइक्रो यूज़ किया है। अवेलेबिलिटी जोन है 1A, ये उसका नेम है पब्लिक IP एड्रेस, और ये उसका एक पब्लिक IP मिलेगा और एक प्राइवेट IP मिलेगा। आप देख सकते हो राइट साइड जाके, ये सिक्योरिटी ग्रुप नेम है, ये कीज़ नेम है, लॉन्च टाइम है। तो जो जो आप चाहते हो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। क्लिक ऑन द सेटिंग्स, आपको क्या क्या ऑन द टॉप चाहिए तो आप उसको क्लिक कर सकते हो। तो जो जो ये नीचे वाले हैं VPC ID ये नहीं है अटैच, तो आप डिपेंड अपॉन यू, आप क्या चाहते हो वहाँ पे, ठीक है। बाकी आप डिटेल्स नीचे देख सकते हो। दिस इज़ द पब्लिक IP, अभी ये रनिंग स्टेट में आ गया, तो ये प्राइवेट IP है और ये पब्लिक IP है। तो हमें इसको कनेक्ट करना है, तो क्लिक ऑन द कनेक्ट। तो आपके पास 2-3 ऑप्शंस हैं यहाँ पे। एक तो है EC2 इंस्टेंस कनेक्ट, अगर आप क्लिक करते हो यहाँ पे तो सीधा क्लिक करो तो ये ब्राउज़र बेस्ड कनेक्ट होगा ऐसे, ठीक है। तो मेरे में ब्राउज़र में कुछ इश्यूज आता है, लेकिन दूसरे ब्राउज़र पे चलता है। टास्क 1 कॉन्फ़िगर नेटवर्क एक्सेस टू द इंस्टेंस, अनएबल टू कनेक्ट, अभी ये अनएबल टू आ रहा है, इट्स ओके। बट मैं जनरली यूज़ करता हूँ SSH क्लाइंट। आप पुट्टी यूज़ कर सकते हैं अपने लैपटॉप के ऊपर। अगर आपके पास मैक है तो यू डोंट रिक्वायर्ड एनीथिंग। तो इसको ओपन करो, अपना टर्मिनल खोलो अपने लैपटॉप के ऊपर,
टर्मिनल के ऊपर जाओ, आप डाउनलोड्स फोल्डर में जाओ, पहले डाउनलोड्स। अभी आपने एक कीज़ को डाउनलोड किया, जैसे मेरे पास थी एक्स्ट्रा इन्फोटेक कीज़, ये डाउनलोड की थी, इसकी परमिशन चेंज करनी पड़ती है। chmod वो भी कमांड यहीं पे दे रखी है ऊपर, आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ये देखो ऊपर कमांड दे रखी है, इसको कॉपी कर लो, कॉपी, और इसको रन कर लो डायरेक्टली, तो इसकी परमिशन चेंज हो जाएगी। एंड देन रन डाउन कमांड, दिस वन। तो यहाँ पे यू आर एबल टू कनेक्ट। तो ये हमारा एक फर्स्ट बेसिक कि हाउ यू कैन क्रिएट ए EC2 इंस्टेंस, हाउ इट विल बी क्रिएट ऑन क्लाउड। नाउ आस्क योर क्वेश्चंस इफ यू हैव एनीथिंग। Okay, so clear up to here? Okay, good. नेक्स्ट हम कवर करेंगे व्हाट इज AMI। हमने AMI अभी जो यूज़ की थी वो की थी जो ऑलरेडी हमें AWS ने दी, प्रोवाइड की। अगर मैं इस वेब सर्वर पे जाता हूँ तो इसकी अगर देखा जाए ये इंस्टेंस आईडी है, इसी तरह इसका AMI आईडी नीचे होगा। एक मिनट नीचे चलते हैं, ये है इसका AMI नेम और ये है उसका AMI आईडी इज़ दिस ऑन द टॉप। ठीक है, तो ये तो AMI कंपनी ने मुझे दी थी, अभी हम लोग AWS ने दी थी। जनरली इन द प्रोडक्शन कंपनी आपको देती है AMI इमेज कौन सी यूज़ करनी है, आप कोई भी उठा के नहीं यूज़ कर सकते। वो क्यों होता है ऐसे? नाउ कम हियर, लेट मी मूव इट इनटू द, और मैं इस कंसेप्ट को ख़त्म करता हूँ और AMI पे आता हूँ। तो जनरली होता क्या है, अभी थोड़ा और समझते हैं इन चीज़ों को इन डिटेल्स। आपने एक VM बनाया, ठीक है, यहाँ पे एक VM बनाया। VM के अंदर आपने एक मतलब आपने VM बोलो, मैं इसको इंस्टेंस बोल देता हूँ, चलो लाइनक्स इंस्टेंस लाइनक्स। अभी ये 2 मिनट में लाइनक्स इंस्टेंस कैसे तैयार हो गया? विद इन 2 मिनट, 2 मिनट्स भी छोड़ो, 30 सेकेंड्स में हो गया। होता क्या है, इस इंस्टेंस के साथ जब हम AMI इमेज को जोड़ते हैं, ठीक है, मैंने एक सिलेक्ट की AMI इमेज, ये AMI इमेज थी रेड हैट की, रेड हैट। होता क्या है इन द बैकग्राउंड, ये इमेज की कॉपी बन जाती है आपकी रूट वॉल्यूम। तो यहाँ पे ये कॉपी करके उसका एक इमेज रेडी कर देता है। यहाँ पे ये जो आपका रूट वॉल्यूम है, ये जो पर्टिकुलर इमेज है वो यहाँ पे कॉपी होगी पूरी, ठीक है। एक तरह से ये पहले से सब कुछ इंस्टॉल था, जस्ट कॉपी इट एंड अटैच विद योर इंस्टेंस। तो ऐसे ये कॉपी करने में जो टाइम लगा, बस दैट इज़ द टाइम ये वॉल्यूम की एक कॉपी बन गई। विद इन 30 सेकेंड इट्स क्रिएट ए वॉल्यूम और आपका काम स्टार्ट हो गया। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम सब कुछ पहले ही था, ओके। अभी क्या हुआ, मैंने ये कॉपी बनाई, चलो अभी ख़त्म। अब ये तो मार्केट में पड़ी है, दोबारा भी यूज़ कर सकता है, कोई भी यूज़ कर सकता है, यू कैन यूज़, आई कैन यूज़, ओके। अभी ये मेरा बन गया है। अभी मैं क्या करता हूँ, इस लाइनक्स इंस्टेंस को एक वेब सर्वर बनाता हूँ इसको। तो मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर जाता हूँ, ये मेरा कंपनी मुझे बोलती है ये हमारा वेब सर्वर है, इसको इस पर वेब सर्वर बनाओ, ओके, या यूज़ करो। तो मैं क्या करता हूँ, एक वेब सर्वर क्रिएट किया था, आई विल यूज़ द सेम वन, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी ट्राई इफ इट इज़ वर्किंग, Ctrl+C, ये मैं शेयर कर दूँगा। तो मैं वेब सर्वर इंस्टॉल करने का वे है yum-y install httpd। तो ये पैकेज आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो मीन्स इट्स लाइक ए सॉफ्टवेयर टू इंस्टॉल। आपका मैनेजर बोलता है ये जो लाइनक्स इंस्टेंस हमने क्रिएट किया है उसके ऊपर वेब सर्वर बनेगा, ठीक है। अभी मैंने वेब सर्वर बनाना शुरू कर दिया, तो इट इज़ टेक सम टाइम, मैनुअल वर्क है, राइट। तो देखो, लेट्स सी हाउ मच टाइम इट विल टेक, देखो, ओके। तो ये मेरा वेब सर्वर, वेरी सिंपल टास्क, मतलब एक सिंपल वेब सर्वर, लेकिन इसमें कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस करने हैं और बहुत कुछ करना पड़ सकता है। तो मैं बहुत ही सिंपल वेब सर्वर बना रहा हूँ, एको
तो मैंने ये जो अपना सारी फाइल थी इसको कॉपी कर दिया, वेयर, जहाँ सिंपल कर देता हूँ आपको, एक फ़ाइल बनाओ वेयर www.html, इसके अंदर एक फ़ाइल बनाओ index.html, इस फोल्डर के अंदर एक फ़ाइल बनाई इंडेक्स, इसमें मैंने ये सब कुछ पेस्ट कर दिया जो मैंने अभी आपको दे रहा था, ठीक है। ठीक, ये उसने में ऐसे ही लिखा है बट इट्स ओके, मैंने इसको कॉपी पेस्ट किया। अभी मैं क्या करता हूँ, अपनी सर्विस को systemctl start httpd स्टार्ट करने का मतलब है ये वेब सर्वर स्टार्ट हो गया है, और दूसरी कमांड यूज़ करता हूँ अनेबल। अनेबल का मतलब ये है कि अगर मैं सिस्टम को रीस्टार्ट करता हूँ तो मुझे बार बार इसको स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है, इट विल परमानेंटली स्टार्ट ना। अभी इसको मैं ओपन करता हूँ ब्राउज़र में, तो इसका पब्लिक IP उठाओ, कॉपी एंड ट्राई ऑन द ब्राउज़र। सी, मेरा वेब सर्वर रेडी हो गया। इट्स माई फर्स्ट वेब सर्वर इन US रिटन माई होस्ट नेम इज डॉलर वेब सर्वर टू टेस्ट लोड बैलेंसर, जो भी मैंने लिखा है वो यहाँ पे लिखा आ गया, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया कि मेरा वेब सर्वर रेडी हो गया, कंपनी ने मुझे जो बोला था मैंने अपना काम कर दिया। अभी मेरा मैनेजर बोल रहा है कि सेम वेब सर्वर तुम्हें 3 और ऐसे वेब सर्वर बनाने हैं, यहाँ बनाना है, एक मुंबई में ऐसा ही वेब सर्वर बनाना। ये तो अभी 2 मिनट का काम तो हो गया, बट सम आर वेरी कॉम्प्लेक्स, उसमें डेटाबेस अटैच करो, उसमें कुछ नया कॉन्फ़िगरेशन अटैच करो, वो सारा कुछ करने के बाद मान लो आपको 2 दिन लगे उसको बनाने में, तो 2 दिन के बाद आपका मैनेजर बोलता है ऐसे मुझे 2-3 और बनाने हैं, ठीक है, एक मुंबई में एक, तो आपके तो 8-10 दिन लग जाएंगे। नो, क्लाउड में हम क्या करते हैं, इसका इमेज ले लेते हैं, तो जो हमने अभी बनाया उसका हम इमेज क्रिएट कर सकते हैं इस वेब सर्वर का। तो व्हाट यू कैन डू, गो टू एक्शन, इमेज, क्रिएट इमेज। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अंडरस्टैंड करो कि मैंने इसमें सब कुछ इंस्टॉल कर दिया। इसमें कौन कौन से सॉफ्टवेयर मैंने इंस्टॉल किए, अभी सोचो। मैंने HTTPD इंस्टॉल किया, ठीक है, मैंने इसमें वेब सर्वर अपना पूरा बना दिया है। अभी मैं इसकी एक कॉपी बना रहा हूँ, मतलब इसका एक मैंने इस इमेज की एक कॉपी बना रहा हूँ यहाँ पे, जिसको मैं बोलूँगा अपनी AMI इमेज ऑफ वेब सर्वर। ये किसकी इमेज होगी, कंपनी, ये मेरी इमेज होगी। नोबडी कैन मीन्स राइट एनीथिंग यूज़ दिस वेब सर्वर, क्योंकि ये मेरी कंपनी का पर्टिकुलर इमेज है, मैंने इसकी एक इमेज बना दी, इमेज, ठीक है। तो दिस इज़ द कॉल था, एक बार बनेगी देन कनेक्शन इज़ ओवर। उसको मैं फिर इसको यूज़ करके, जैसे लास्ट टाइम हमने इसको यूज़ करके ऐसे बनाया था, अभी मैं इसको यूज़ करके मल्टीपल लाइनेक्स इंस्टेंसेस बना सकता हूँ। मैंने इसको यूज़ किया, इसका एक कॉपी बनाई, वो रूट वॉल्यूम बनेगा, रूट वॉल्यूम फिर वो उसके साथ अटैच हो जाएगा ऐसे। तो इससे मैं मल्टीपल ऐसे लाइनेक्स इंस्टेंस बना सकता हूँ और सेम चीज़ चलेगी। अभी लेट्स सी हाउ इट विल वर्क। तो पहला स्टेप, हम इससे ये AMI सर्वर बनाएंगे इमेज, लेट्स गो। तो मैंने क्लिक किया इंस्टेंसेस यहाँ पे, ठीक है, आप इंस्टेंस पे आए थे, दोबारा दिखा देता हूँ, सिलेक्ट करो, क्लिक ऑन इंस्टेंस एक्शन, इमेजिंग, क्रिएट इमेज। अभी इमेज का नाम दे दो, फॉर एग्जांपल मैं नाम देता हूँ वेब सर्वर, वेब सर्वर AMI, कोई भी नाम दे दो, आपकी मर्जी है। तो इसका नीचे है डिस्क्रिप्शन, वेब सर्वर, नो रीबूट। जनरली क्या होता है कि जब इमेज क्रिएट करता है तो सिस्टम रीबूट होता है, सो दैट कि अगर कोई कनेक्शन बना हुआ है, कुछ ऐसी फाइल को लॉक करके रखा हुआ है जो मैं कॉपी ना कर पाऊँ, तो उसमें क्या होगा, बाद में इमेज माइट भी ना वर्क करे। तो जनरली ऑप्शन क्या होती है, रीबूट होगा। बट तुम्हें लगता है कि मुझे रीबूट नहीं करना, तो यू कैन सेलेक्ट दिस ऑप्शन, इट विल नॉट रीबूट योर इंस्टेंस। अभी यहाँ पे भी वो पूछ रहा है 2 चीज़ें कि तुम्हें दोनों इमेज, हमने 2 डिस्क क्रिएट की थी, तो कौन सी डिस्क का इमेज करना है या दोनों का करना है। तो मैं सिर्फ एक का ही करता हूँ, जो मेरा रूट वॉल्यूम है मुझे दूसरी नहीं चाहिए फॉर एग्जाम्पल, तो मैं दूसरी को हटा भी सकता हूँ। अभी जब वो इमेज बनाएगा तो इसमें सिर्फ एक ही डिस्क को कॉपी करेगा। हमने यहाँ पे 2 डिस्क बनाई थी एक्चुअली, एक 8 GB की और एक 10 GB की ऐसे, तो ये मेरी 8 GB वाली डिस्क थी।
तो मैंने अभी जो इमेज ली है वो सिर्फ यहाँ से ली है, तो मैं इसको कलर कर देता हूँ ताकि आपको रहे कि ये कलर है। तो ये EMI इमेज बनी है इस कलर से। तो अभी ये इसका कलर भी यही बनेगा जब नेक्स्ट टाइम क्रिएट होगा। ओके, तो मैं नीचे आओ, क्रिएट इमेज। अभी मैंने इमेज क्रिएट किया, तो लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे आइए EMI पे, और सी यहाँ पे इमेज पेंडिंग है, तो ये बननी शुरू होगी। इसका नाम यहाँ पे देने के लिए मैं दे देता हूँ वेब सर्वर EMI। तो बनना शुरू हो गया। एनी क्वेश्चन टिल नाउ? ओके, तो अभी ये EMI इमेज बन रहा है। इस इमेज से फिर हम नया इंस्टेंस बनाएंगे, ये वाला पार्ट, ठीक है? तो वो देखना है, तो लेट इट बी कंप्लीट। फिर आता है इसको कौन कौन देख सकता है, तो वो है परमिशंस। फॉर एग्जांपल मुझे किसी और को इसकी परमिशन देनी है, तो मैं यहाँ पे एडिट करूँगा, तो उसका अकाउंट नंबर दूंगा, एंड दैट पर्सन विल आल्सो सी माई इमेज। बट मेरी परमिशन के बिना कोई नहीं कर सकता जब तक मैं ये परमिशन नहीं दूंगा। तो वो कैसे करना है, यहाँ पे जाओ, ये है अकाउंट नंबर। तो आप किसी का फॉर एग्जांपल कंपनी में या दूसरी कंपनी में, या आपका फ्रेंड जिसको भी आप शेयर करना चाहते हो, उसका अकाउंट नंबर यहाँ लिखो, ऐड परमिशन करो और सेव कर दो। तो दैट पर्सन कैन आल्सो सी दिस इमेज। तो वो इमेज कैसे देखेगा, यहाँ पे आप जाओगे, ओन्ड बाय मी आता है, नो, यहाँ पे उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा प्राइवेट इमेजेस। तो प्राइवेट इमेजेस के अंदर ये आ जाएगा, क्योंकि मैंने इस अकाउंट के साथ शेयर किया है, ठीक है? ओन्ड बाय मी में ये मेरी इमेजेस आती हैं। अभी ये रेडी हो गया, स्टेटस इज अवेलेबल। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे गो टू योर इंस्टेंसेस वंस अगेन, यू कैन डू इट फ्रॉम हियर इटसेल्फ, बट मैं शुरू से बता रहा हूँ। इंस्टेंसेस पे जाओ, लॉन्च द इंस्टेंस। अभी लॉन्च द इंस्टेंस, इस टाइम आप यूज़ करोगे माई EMI रैदर दैन ये तो जो क्विक स्टार्ट EMI होती है ना कंपनी AWS की तरफ से, अभी आप अपनी EMI यूज़ करोगे। तो इसको सिलेक्ट करो, तो ये बनाओ। अभी मान लो इसको दूसरे अवेलेबिलिटी जोन में मुझे 1B में बनाना है, कर दिया। स्टोरेज सेम आ गया, ऐड टैग नेम दे दो, मैं दे देता हूँ वेब सर्वर 2, दे दिया नाम। सिक्योरिटी ग्रुप जो हमने अभी बनाया था, एक्सा सिक्योरिटी ग्रुप, एंड लॉन्च इट। अभी देखो ये वेब सर्वर 2 बन गया। तो वेब सर्वर जो मेरा 1 था उसमें ये चल रहा था, ये इसका IP था। और मैं अभी वेब सर्वर 2 देखूंगा विदाउट डूइंग एनीथिंग, जैसे वो रनिंग कंडीशन में आ जाएगा तो विल चेक दैट। तो अगर मैं वेब सर्वर 2 का पब्लिक IP लूँ, यहाँ से कॉपी करूँ और ब्राउज़र पे डालता हूँ, तो अभी वो क्रिएट नहीं हो, लेट इट बी। पेंडिंग कंडीशन में है, सी इट इज़ रनिंग। अभी चेक करो यहाँ पे आके, देखो ऑटोमेटिकली मेरा वेब सर्वर रेडी हो गया। तो कितना आसान हो गया मेरे लिए काम। एक बार वेब सर्वर बनाया, अभी दूसरी बार सेम वेब सर्वर मैंने सिर्फ उसको डिप्लॉय किया, वो चल गया, राइट? सो दैट इज़ द बेनिफिट ऑफ योर EMI इमेज। अभी इस EMI इमेज को, अभी ये इमेज कहाँ पे है, नॉर्थ वर्जीनिया में। मान लो ये इमेज मुझे कॉपी करनी है मुंबई में, तो कॉपी EMI इमेज, तो यहाँ पे जाओ, यहाँ पे सेलेक्ट करो मुंबई और कॉपी द इमेज।
तो अभी ये कॉपी कहाँ पे हो जाएगा, मुंबई में भी, और वहाँ पे जाके भी सेम वेब सर्वर क्रिएट कर सकते हो। तो लेट्स गो टू मुंबई। सी है, यहाँ पे कॉपी होना शुरू हो गई। ओके, एनी क्वेश्चन? ओके, तो ये टाइम लगेगा क्योंकि ये कॉपी होना है यूएस से इंडिया, तो इट विल टेक सम टाइम, बट इट विल कॉपी। अभी EMI इमेज को आप कैसे मर्जी यूज़ करो, ठीक है, बट हाउ टू रिमूव दिस EMI इमेज? तो EMI इमेज को एक्शन में जाओ, डी रजिस्टर पहले करना पड़ता है। डी रजिस्टर यहाँ से फिर बंद होगा, फिर आपको इसके स्नैपशॉट्स में जाओ और ये स्नैपशॉट बनता है इसका, बट व्हाट इज़ द टेक्नोलॉजी बिहाइंड द स्नैपशॉट वी विल कवर अप इन अपकमिंग चैप्टर्स। तो इसको डिलीट कर दो, इस स्नैपशॉट को, तो देन योर स्नैपशॉट विल बी डिलीटेड एंड नो EMI विल बी हियर नाउ, ठीक है। तो मुंबई में भी जब क्रिएट हो जाए, कंप्लीट हो जाए, तो आप प्लीज़ उसको डिलीट कर दो, ठीक है, बिकॉज इसमें सिर्फ स्नैपशॉट ओनली 1 GB इज़ फ्री। तो अगर 8 GB का वो रहेगा तो इट विल बी चार्जेबल आफ्टर सम टाइम। तो अभी मेरे 2 VM रन हो रहे हैं अलग अलग, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द EMI इमेज। हमने क्रिएट कर लिया और कॉपी भी कर लिया इमेज को एक रीजन से दूसरे रीजन में। अभी हम लोग जब इंस्टेंस को क्रिएट मीन्स कनेक्ट करते हैं तो कैसे करते हैं? अगर आप देखो तो यहाँ पे इंस्टेंस को अगर सिलेक्ट करो तो आपको एक पब्लिक IP मिलता है। व्हाट अबाउट दिस पब्लिक IP? ठीक है, इसमें एक और ऑप्शन होती है इलास्टिक IP, वो डैश है, ठीक है। नो, पब्लिक IP क्या रहता है? पब्लिक IP इज गिवन टू यू बाय AWS डायनेमिकली। मतलब अभी इसका IP ये है, अगर इसको स्टॉप कर दोगे तो ये IP चला जाएगा, ठीक है। तो लेट मी स्टॉप दिस इंस्टेंस। तो ये IP यहाँ से चला जाएगा। मैं इसको कॉपी करता हूँ, तो नेक्स्ट टाइम इसका नया IP आएगा, ठीक है। और तुम्हारा वेब सर्वर, राइट, so every time it will come in new IP address, change IP address। बट अगर आपको चाहिए कंपनी में भाई वेब सर्वर का IP मैं बार बार नहीं चेंज कर सकता, तो देन यू हैव टू अटैच विद द इलास्टिक IP एड्रेस, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, दैट IP एड्रेस इज ऑलवेज विद यू। देखो अभी स्टॉप हो गया, अगर मैं इसको क्लिक करूँ तो ये को इसका IP चला गया, राइट। तो अभी जब आप स्टार्ट करोगे तो इसको कोई भी नया IP मिल जाएगा, बट इट कांट बी सेम, ठीक है। जो अवेलेबल होगा उस टाइम पे AWS आपको वो IP दे देगा। दैट इज कॉल्ड द डायनेमिक IP एड्रेस। इलास्टिक IP एड्रेस इज, यहाँ पे जाओ इलास्टिक IP। तो इलास्टिक IP का मतलब है आपका एक डेडिकेटेड IP आप चाहिए जो आपके अकाउंट पे रहे। तो यहाँ पे करना क्या पड़ेगा, जस्ट एलोकेट IP एड्रेस। तो ये IP एड्रेस आपको बताना पड़ेगा कौन से नेटवर्क बॉर्डर में आएगा, लाइक US East 1, कि मुझे कौन से रीजन में ये चाहिए, ठीक है। इसका नाम दे दो, नेम एक्सा IP, ठीक है। तो एलोकेट कर लो, तो ये IP एड्रेस आपको मिल गया। बट ये IP एड्रेस अभी आपके अकाउंट में आया है, बट नो इन यूज़। तो इसको यूज़ करने के लिए क्या करना है, एक्शन एसोसिएट इलास्टिक IP एड्रेस। अभी इसमें क्या है, आपके पास दो ऑप्शंस हैं, इंस्टेंस और नेटवर्क इंटरफेस। अभी जब भी आपका यहाँ पे EC2 इंस्टेंस क्रिएट होता है, ठीक है, EC2 इंस्टेंस क्रिएट होता है,
तो ये इंस्टेंस का नाम होता है और हर इंस्टेंस के साथ एक नेटवर्क कार्ड अटैच रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जब भी EC2 क्रिएट होता है। अभी वो बोल रहा है कि जो इलास्टिक आईपी है EIP, ठीक है, इसको किसके साथ अटैच करना है EIP को। यू कैन अटैच इट विद द निक कार्ड और यू कैन अटैच दिस डायरेक्टली टू द इंस्टेंस लेवल। अभी दोनों में डिफरेंस क्या आता है ये अंडरस्टैंड करने वाली बात है। निक कार्ड का ऐसे होता है कि कहीं बाय डिफ़ॉल्ट 1 निक कार्ड इज़ अवेलेबल। अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास 2 निक कार्ड हैं, इसमें एक और अटैच करता हूँ और इसको मैं इसके साथ कॉन्फ़िगर कर देता हूँ। ऐसे मैंने ये इलास्टिक आईपी इस निक कार्ड 2 के साथ कॉन्फ़िगर कर दिया, ठीक है। इसका बेनिफिट क्या है निक के साथ, जब आपका ये इंस्टेंस मान लो आपको नहीं चाहिए, फॉर एग्जांपल दिस इज़ योर लाइनक्स इंस्टेंस और मैं इसको लिख देता हूँ वेब सर्वर। मान लो आपको ये वेब सर्वर आपका पुराना हो गया, आपने वेब सर्वर का डिज़ाइन बदल दिया, फ्रंट एंड बदल दिया और नया वेब सर्वर बना दिया। ऐसे ये वेब सर्वर न्यू वेब सर्वर कर दो इसको, ठीक है, न्यू वेब सर्वर आपने बना दिया। बट तुम्हारे जो क्लाइंट है वो तो चेंज नहीं होंगे, उनको नहीं पता लगना चाहिए क्या हुआ। तो हम लोग क्या करते हैं, इस निक कार्ड को उठा के इसी भी के साथ अटैच कर देते हैं इसके साथ ऐसे। तो अभी होगा क्या, किसी को पता नहीं लगेगा क्लाइंट्स को कि क्या हुआ इन द बैक एंड। वो जैसे सुबह अपना खोलेंगे वेब सर्वर तो उनको ये नया वेब सर्वर दिखाई देने लगेगा, क्योंकि जो आईपी अटैच यहाँ पे था पहले उसके निक कार्ड को ही मैंने करके चेंज कर दिया। नहीं तो दूसरी ऑप्शन क्या है, मुझे यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा और इस इलास्टिक आईपी को इसके साथ अटैच करना पड़ेगा इंस्टेंस लेवल पे। दैट इज़ द 2 ऑप्शंस आर अवेलेबल हियर, इंस्टेंस और नेटवर्क इंटरफेस। ये इंस्टेंस में आपको सिलेक्ट करना है किसके साथ करना है, तो मैंने वेब सर्वर सेलेक्ट किया, इसका प्राइवेट आईपी सेलेक्ट किया और एसोसिएट किया। जैसे मैंने एसोसिएट किया, अब देखो इंस्टेंसेस में तो ये मेरा वेब सर्वर 2 को नया आईपी अटैच हो जाएगा। अभी रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे देखो इलास्टिक आईपी दिखाई देने लग गया, ठीक है, और पब्लिक आईपी में भी सेम आईपी नज़र आने लग गया। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको स्टार्ट भी अभी परमानेंट स्टार्ट करो, स्टॉप करो, जो मर्जी करो, तो ये आईपी इसी के साथ अटैच रहेगा अनटिल अनलेस आप इसको मैन्युअली नहीं हटाते, ठीक है। तो इसको कॉपी करेंगे अभी इस आईपी एड्रेस को, जैसे ही ये स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं अभी इसको रिफ़्रेश करूं पुराने आईपी को तो ये नहीं चलेगा क्योंकि ये ऑलरेडी बंद हो चुका है, ठीक है। तो ये घूमता रहेगा, घूमने के बाद थोड़ी देर के बाद ये बोल देगा पेज कांट बी डिस्प्ले। बट अगर मैं नया वाला डालता हूँ अभी आईपी जो अभी हमने किया है तो उसका देखते हैं, ये वाला आईपी एड्रेस, तो ये अभी रनिंग में आ गया, रिफ़्रेश हो गया। अभी यहाँ देखो वेब सर्वर ये नया चल गया। अगर पुराने वाले पे जाओगे तो ये थोड़ी देर के बाद यहाँ पे आ जाएगा पेज कांट बी डिस्प्लेड, ठीक है ना, क्योंकि वो भी पुराना बचा ही नहीं है, आईपी एड्रेस है ही नहीं है, ठीक है। क्लियर अभी? एनी डाउट इलास्टिक आईपी और पब्लिक आईपी, ठीक है। अभी थोड़ी सी डिफरेंस क्या है, एक मेजर डिफरेंस जो हमने अभी देखा कि पब्लिक आईपी आपके अकाउंट के साथ कोई लेना देना नहीं होता। जब तक आपका इंस्टेंस रहता है तब तक पब्लिक आईपी रहता है। जैसे ही आप स्टॉप करते हो पब्लिक आईपी चला जाता है और फिर से नया मिलता है आपको, ठीक है। तो इलास्टिक आईपी उस केस में नहीं है, ये आपके अकाउंट के साथ रिलेटेड, आप पे करते हो इसके लिए। तो एक आईपी एड्रेस फ्री है अगर वो यूज़ हो रहा है इलास्टिक आईपी, उसके बाद वो चार्जेबल होते हैं। तो आपकी कंपनी को जितने इलास्टिक आईपी चाहिए होंगे परमानेंट, उस हिसाब से आपको पे करना पड़ेगा AWS को, ठीक है। और इलास्टिक आईपी फिर हमेशा स्टैटिक रहता है, वो चेंज नहीं होता, ठीक है, जब तक आप नहीं हटाते। तो हटाने का वे क्या है, फॉर एग्जांपल आपके EC2 इंस्टेंस हैं तो पहले आप उस EC2 इंस्टेंस पे जाओ, ठीक है। तो आप यहाँ से रिलीज़ कर उसको कर दो इंस्टेंस नेटवर्किंग चेंज डिसएसोसिएट इलास्टिक आईपी एड्रेस। जब आप ये क्लिक करोगे तो यहाँ से ये आईपी हट जाएगा और फिर से इसको नॉर्मल पब्लिक आईपी एड्रेस मिलेगा, डायनेमिकली कोई भी नया आईपी एड्रेस मिल जाएगा, ठीक है।
अभी इलास्टिक नेटवर्क इंटरफेस, अभी हम जो बात कर रहे थे, बाय डिफ़ॉल्ट जैसे ही आप इंस्टेंस क्रिएट करते हो तो आपको एक नेटवर्क इंटरफेस मिलता है। जैसे आप लैपटॉप खरीदते हो तो लैपटॉप के साथ आपको एक नेटवर्क कार्ड फ्री मिलता है, बट क्या आपके साथ उसके साथ वाईफाई भी रहता है, राइट? आप कनेक्ट करते हो। लेकिन वर्चुअल मशीन में क्या है, आप मल्टीपल नेटवर्क इंटरफेस क्रिएट कर सकते हो, ठीक है? तो नेटवर्क कैसे क्रिएट करोगे? आप मल्टीपल नेटवर्क इंटरफेसेस पे जाओ, आप देखोगे कि ऑलरेडी 2 क्रिएटेड है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो मीन्स आप यहाँ पे आपके पास 2 अभी मशीन है, वेब सर्वर 2, इसके साथ ये इलास्टिक आईपी अटैच है और इसके साथ भी एक इसका निक कार्ड है। तो दोनों के साथ एक एक निक कार्ड अटैच है अलग अलग, ठीक है? अभी मुझे एक न्यू इसके साथ अटैच करना है, न्यू हमें क्रिएट करना है, मुझे एक नया निक कार्ड यहाँ पे मैं क्रिएट करूँगा, निक 2, ठीक है? उस निक 2 को मुझे इसके साथ मान लो अपने वेब सर्वर 1 के साथ या वेब सर्वर 2 के साथ क्रिएट करना है, ठीक है? तो ये कौन से रीजन अवेलेबिलिटी जोन में रन कर रहा है? 1B, ये कर रहा है 1A। कैसे मुझे पता? यहाँ पे देखो, ये एक 1A में है, एक 1B में है। तो वेब सर्वर 2 मेरा 1B में है। तो अभी मैं अगर मुझे अटैच करना है नया निक कार्ड तो मुझे उसी रीजन में, उसी अवेलेबिलिटी जोन में बनाना पड़ेगा। क्रिएट नेटवर्क इंटरफेस करो, यहाँ पे नाम दे दिया मैंने निक 2। तो यहाँ नाम दे दिया निक 2। ऑटो असाइन तो हो जाएगा, ठीक है? कौन सा आईपी इसको देना है, ऑटो असाइन रहेगा। और अगर कस्टम करना है तो अपने आप दे सकते हो। ये इलास्टिक फाइबर अडॉप्टर वी विल टॉक अबाउट लेटर। अगर ये पर्टिकुलर डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क इंटरफेस रहता है तो वी विल टॉक इन द लास्ट चैप्टर। तो आप क्रिएट करते हो सबनेट, सॉरी ये नाम नहीं था, सबनेट था। सबनेट का मतलब होता है कि कौन से अवेलेबिलिटी जोन में आपको क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1B, सिलेक्ट कर लिया, ठीक है? 1B में, तो 1B में ये सारे सिक्योरिटी ग्रुप हैं। तो वो पूछता है कौन से सिक्योरिटी ग्रुप के साथ आपको अटैच करना है, ठीक है? तो बाय डिफ़ॉल्ट मैं एक्सा के साथ ही करूँगा। तो यहाँ सर्च कर लो, एक्सा करोगे तो ये नीचे आ गया एक्सा SG, जो आज ही मैंने क्रिएट किया है। तो मैंने ये सिक्योरिटी ग्रुप भी इसके साथ अटैच कर दिया। अभी लर्निंग यहाँ पे ये है कि जब भी आप EC2 इंस्टेंस बनाते हो उसके ऊपर जो फायरवॉल लगती है, जिसको हम सिक्योरिटी ग्रुप बोलते हैं, वो एक्चुअली किसके साथ अटैच होता है? वो आपके नेटवर्क इंटरफेस के साथ अटैच होता है, ठीक है? सिक्योरिटी ग्रुप ऐसे, ठीक है? तो ये नेटवर्क इंटरफेस के साथ अटैच होता है। तो कोई भी ट्रैफिक जब आपके इस सर्वर पे आती है तो इस नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप जो इस नेटवर्क इंटरफेस के साथ अटैच है, तब वो अंदर मतलब उसको अलाउ करता है या डिनाई करता है, ठीक है? तो मेरा ये इंटरफेस बन गया। मैंने इसका नाम दे देता हूँ यहाँ पे निक 2 अगेन। चलो, अभी ये मैंने सिर्फ क्रिएट किया है। अगर इसको देखा जाए स्टेटस अवेलेबल है, ठीक है? तो ये यूज़ में नहीं है। तो इसको कैसे यूज़ करना है? सिलेक्ट करो इसको, एक्शन अटैच इट। अटैच किस में करना है? यहाँ पे देखो, यहाँ पे मुझे बताओ सिर्फ एक ही इंस्टेंस दिखाई देता है। देखो ओनली वेब सर्वर 2, मेरा वेब सर्वर 1 क्यों नहीं दिखाई दे रहा? नहीं, दोनों एक्टिव हैं। अगर मेरे दोनों इंस्टेंस देखो तो दोनों एक्टिव हैं। मैं बताता हूँ, देखिए, नहीं, ये देखो मेरे दोनों इंस्टेंस वर्किंग में हैं, पर यहाँ पे जब मैं अटैच करने जा रहा हूँ तो एक ही दिखा रहा है, दूसरा नहीं दिखा रहा। अभी अंडरस्टैंड करो कि ये 2 सर्वर हैं। ये कहाँ चल रहा है? अवेलेबिलिटी जोन 1 में। ये कहाँ चल रहा है? अवेलेबिलिटी जोन 2 में। हमने जब निक कार्ड ये बनाया तो ये कौन से अवेलेबिलिटी जोन में बनाया? 2 में। तो ये 2 में बना के 1 के साथ अटैच नहीं कर सकते ना, ये तो 2 डिफरेंट जगह होगी। तो 2 वाला 2 में ही होगा,
नहीं, रीजन नहीं, अवेलेबिलिटी जोन। जब आपने ये निक 2 बनाया तो उसका यहाँ देखो ना, अवेलेबिलिटी जोन किस में बनाया, 1B में, ठीक है ना। तो ये 1B में जब आपने बनाया तो 1B वाला ही देख सकता है। तो 1B में कौन सा आपका इंस्टेंस है, इंस्टेंस 2, ठीक है, तो वो यहाँ पे अटैच हो गया। क्लियर? ये सोचो एक सिंपल ये दो अलग अलग घर हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल तुम्हारा और मेरा घर है, तो दोनों के पास वाईफाई कनेक्शन है। मैंने अपना वाईफाई है, तुम्हारा अपना वाईफाई है, ठीक है। क्या तुम मेरा वाईफाई यूज़ कर सकते हो अपने घर से? नहीं, क्योंकि रीचेबिलिटी नहीं है। सेम थिंग है कि अगर तुम मेरे घर में आ जाओ लैपटॉप लेके, देन यू कैन यूज माई वाईफाई, यस यू कैन यूज, राइट। सेम थिंग यही है। तो ये दो अलग अलग फिजिकल लोकेशंस हैं, ठीक है। एक लोकेशन मान लो मुंबई में अंधेरी होगी और दूसरी लोअर परेल होगी। अगर यूएस मतलब यूएस में है तो आपस में वो मान लो 50 किलोमीटर दूर है, एक 50 किलोमीटर दूर है। तो ये वर्चुअल जो इंटरफेस हमने बनाया है, जिस लोकेशन में बनाया है, उस लोकेशन में कितने भी वीएम होंगे उनके साथ वो अटैच होगा। मान लो इस पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर 10 वीएम है तो वो 10 दिखाएगा, वो दूसरे 10 नहीं दिखाएगा जो दूसरी लोकेशन पे है, ओके, क्योंकि वो उसी लोकेशन पे अटैच कर सकता है। गॉट इट? तो अभी हमने इसको अटैच किया और ये इन यूज हो गया। तो अभी आप इस सर्वर को देखो यहाँ पे, तो इसके पास 2 आईपी प्राइवेट आईपी आने शुरू हो गए, देखो सी। तो अगर आप इस पे लॉगिन भी करोगे तो आपको 2 आईपी एड्रेस दिखाई देंगे अभी, ठीक है। दैट इज़ द वे। कई एप्लीकेशंस होती है ना, जैसे ये एप्लीकेशन है आपके पास, इस एप्लीकेशन के साथ एक डेटाबेस सर्वर पीछे अटैच है, ये हो गया डेटाबेस। इसको कनेक्ट करने के लिए आई विल यूज़ द डिफरेंट आईपी एड्रेस और डिफरेंट निक कार्ड। ये मेरा निक कार्ड यूज़ होगा दूसरे कामों के लिए, ये निक कार्ड होगा मेरा डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए, तो फास्टर एक्सेस रहेगा। तो उनके लिए यू हैव समटाइम्स यू हैव टू यूज़ मल्टीपल निक कार्ड्स ऑन सेम इंस्टेंस, ठीक है। क्लियर अप टू हियर? ओके, तो अभी वी हैव टू टॉक अबाउट द EBS एज वेल। EBS में क्या होता है कि यू हैव द डिफरेंट, ओके लेट्स टेक इन दिस वे कि मेरे लैपटॉप में एक डिस्क है, उस लैपटॉप की डिस्क, ठीक है, विंडोज़ में होता है C ड्राइव, D ड्राइव, E ड्राइव, लाइनेक्स में होता है डिफरेंट /etc/bin, जो हमारे मैक में भी सेम स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट फॉलो होता है। तो हमारे पास एक डिस्क होती है जिसपे सारी फाइल्स हम लोग कॉपी करते हैं, चाहे वो ऑपरेटिंग सिस्टम हो, दूसरी फाइल्स हो, तो वो उसमें आती है। दैट इज़ कॉल्ड द डिस्क हमारे नॉर्मल लैपटॉप में। AWS की लैंग्वेज में इसको बोलते हैं EBS, इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज, ओके। तो दिस इज़ द EBS। तो EBS में मल्टीपल ऑप्शंस है, पहले अंडरस्टैंड करो व्हाट इज़ द EBS। तो EBS इज़ ए ब्लॉक स्टोरेज। अभी जब हम बात करते हैं ब्लॉक स्टोरेज की, तो उसका मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं। एज सिंपल कि हमारे पास लैपटॉप की जैसे डिस्क होती है, बाय डिफ़ॉल्ट आती है, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है, ठीक है। और उस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर हम फोल्डर बनाते हैं कोई भी अपना ड्राइव में, ठीक है, मूवीज़, डेटा, लाइक फोल्डर्स, म्यूज़िक, तो तुम उसको यूज़ कर सकते हो। तो सेम चीज़ यूज़ होती है तुम्हारे AWS में भी, ठीक है, इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज। तो अभी तक हमने जो भी डिस्क यहाँ पे क्रिएट की थी, तो इसको बोलते हैं इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज। अगर आप यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे वॉल्यूम्स में आओगे तो ऑलरेडी हमारे पास 3 वॉल्यूम बने हुए हैं। 3 क्यों बने हैं 2 इंस्टेंसेस में? क्योंकि एक में हमने 2 वॉल्यूम अटैच किए थे। अगर याद होगा, इस इंस्टेंस में हमने 2 वॉल्यूम क्रिएट किए थे और इस इंस्टेंस में हमने एक ही वॉल्यूम क्रिएट किया था, ठीक है। तो ये तीनों वॉल्यूम मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, देखो 1 2 3, ये दोनों एक में अटैच हैं और ये वाला
सिर्फ 2 में सिर्फ एक वॉल्यूम अटैच है। एनी डाउट? ठीक है। अभी मान लो मेरे 2 में भी मुझे एक और अटैच करना है, ठीक है, मुझे यहाँ पे डिस्क चाहिए और इसके ऊपर, तो मुझे एक और वॉल्यूम यहाँ पे अटैच करके इसके साथ लगाना है। तो हाउ आई कैन डू दैट? ठीक है, दैट वी विल लर्न अबाउट। उससे पहले EBS block storage, the server based operating system connect to raw volume which are created through the fiber channel and it use the individual disk। होता क्या है जनरली कि आप अभी मुझे जैसे आपने बोल दिया कि मुझे और स्पेस चाहिए, मुझे 20 GB स्पेस चाहिए, 20 GB, तो मुझे 20 GB का एक वॉल्यूम क्रिएट करना पड़ेगा जो मेरे इंस्टेंस के साथ अटैच होगा। ठीक है, सो लेट्स डू दैट। मेक एक्शन, यहाँ पे राइट साइड क्रिएट वॉल्यूम। तो यहाँ पे ये मल्टीपल ऑप्शंस आती हैं। ठीक है, GP2, GP3, IO1, IO2, कोल्ड HDD, मैग्नेटिक, ये सारी हैं टाइप्स। ठीक है, लैपटॉप जब आप खरीदने जाते हो तो उसमें भी मल्टीपल आजकल ऑप्शन आती है कि यू वांट टू यूज़ द SSD डिस्क, ठीक है, यू वांट टू यूज़ द फ्लैश ड्राइव, ये आ जाता है एक तरह से कौन सी डिस्क कितनी फास्ट है। ठीक है, रिमेंबर अगर हम 5 साल पहले या 10 साल पहले के कोई लैपटॉप देखोगे या कंप्यूटर देखोगे, उसमें वो बड़ी बड़ी डिस्क नज़र आती थी, दैट इज़ कॉल्ड द मैग्नेटिक डिस्क। तो वो बहुत ही स्लो होती थी। फिर धीरे धीरे SSD आनी शुरू, SATA आई, फिर SSD आई, अभी फ्लैश ड्राइव आ, तो उन्होंने इसीलिए इसको अलग अलग दे रखा है। उन्होंने मॉडल बना दिया है GP2 जर्नल पर्पस GP2, फिर एक जनरल पर्पस GP3 दे दिया है। अभी इन सभी में अलग अलग डिफरेंस है। जैसे GP2 में आपका मिनिमम IOPS है 3 IOPS पर GB। इसमें आप बता सकते हो ऑटोमेटिकली IOPS बढ़ता जाएगा, लेकिन अगर आपको GP3 यूज़ करते हो तो आप सेलेक्ट कर सकते हो आप थ्रूपुट कितना चाहते हो, कितना IOPS चाहते हो। ठीक है, बेस्ड ऑन दैट मतलब वो इंक्रीज़ हो जाएगा। लेकिन कुछ एप्लीकेशन को बहुत ज़्यादा वो चाहिए होता है IOPS और थ्रूपुट। अगर मैं इसको बात करूं कि इन डिटेल्स IOPS और थ्रूपुट हम बाद में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे कि क्या होता है। इज़ एज सिंपल एज दैट। अभी इसमें समझ लो कि IOPS और थ्रूपुट यूज़ होता है कि आपकी जो फाइल्स उसमें स्टोर्ड हैं, जहाँ जब उस पर राइट होगा या रीड होगा तो वो फास्टर होगी। ठीक है, जितनी फास्ट आपको चाहिए उतना ज़्यादा उस पर IOPS और थ्रूपुट होना चाहिए। ठीक है, बेसिक, बाद में हम डिटेल में इसके लिए बात कर लेंगे। ऐसे ही IO1 में इससे ज़्यादा ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो इसमें आपको मैक्सिमम 5000 IOPS मिलेंगे 100 GB में। ठीक है, अगर मैं IO2 यूज़ करता हूँ तो आप इसमें 1 लाख तक IOPS मिल सकते हैं आपको। ठीक है, तो इट डिपेंड्स अपॉन कौन सी कैटेगरी की डिस्क आप चूज़ कर रहे हो। ठीक है, GP2 में 30 GB फ्री रहता है, तो मैं यहाँ से मान लो 15 GB की डिस्क बना रहा हूँ एक। तो ये कहाँ बनाऊँगा? अभी ये देखो कि कहाँ पे मुझे अटैच करनी है। अगर मुझे डिस्क इसके साथ अटैच करनी है जो ये चल रहा है अवेलेबिलिटी जोन 2 में, तो मुझे ये नई डिस्क भी 2 में ही बनानी पड़ेगी यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे अवेलेबिलिटी जोन 2 कौन सा है, 1B, तो यहीं पे बनाऊँगा। ठीक है, टैग दे दो इसको, नेम वेब सर्वर 2, तो उसका नाम यही बन जाएगा क्रिएट। तो देखो एक और डिस्क मैंने बना दी वेब सर्वर 2। ये अभी स्टेटस देखो इसका, ये क्रिएटिंग में है। ठीक है, तो अभी क्रिएट हो जाएगा। तो इस सिस्टम पे मैं लॉगिन करता हूँ अभी वेब सर्वर 2 पे, कनेक्ट, लॉगिन करते हैं इसके ऊपर। CD downloads,
जब आप AMI से यूज़ करते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट रूट आ जाता है, इसको दोबारा चेंज कर लो EC2-user, तो लॉगिन हो गया। sudo-i, यहाँ पे अगर मैं कमांड रन करता हूँ fdisk-l तो ये दिखाता है कितनी डिस्क हैं। तो इसमें देखोगे अभी एक ही डिस्क अलाउड है अभी, और वो भी कितने GB की है, 10 GB की एक ही डिस्क है, लेकिन अभी मैंने दूसरी अटैच नहीं की है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे हमने जो अभी डिस्क बनाई है वॉल्यूम्स, तो हमने ये डिस्क बना जो ये वाली बनाई है, अभी क्रिएटिंग स्टेज में है। देखिए अभी भी क्रिएटिंग में है, जब तक ये अवेलेबल स्टेट में नहीं आती आप यूज़ नहीं कर सकते। अभी अवेलेबल स्टेट में आ गई एक्शन, तो यहाँ पे आप अटैच करोगे इसको, अटैच वॉल्यूम। तो अटैच किसके साथ करोगे, सिर्फ एक ही दिखाई देगा, क्योंकि उस पर्टिकुलर अवेलेबिलिटी जोन में एक ही इंस्टेंस रन कर रहा है। तो उसका नाम क्या डिवाइस का होगा, SDF एंड अटैच इट। तो जैसे ही अटैच हो जाएगा, यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट नेम आ जाता है। आप चेंज करना चाहते हो कर सकते हो। अभी देखो यहाँ पे 2 डिस्क दिखाई देनी शुरू हो गई, एक 10 GB की, एक 15 GB की। यस, आस्क योर क्वेश्चन। यस, वही नाम SDF जो हमने वहां पे दिया था, सेम नाम यहाँ पे आ गया। यस, ऐसा राइट, तो वो अपने आप ही आ जाएगा। ठीक है, तो अभी आप इस ऑपरेटिंग सिस्टम में इस पर्टिकुलर डिस्क को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो अभी आपने वॉल्यूम क्रिएट कर लिया। ठीक है, इस वॉल्यूम को फॉर एग्जांपल ये वॉल्यूम पे आपने डेटा कॉपी कर लिया, सब कुछ कर लिया। इस वॉल्यूम को आपको कहीं और कॉपी करना है तो वो भी आप कर सकते हो। इस वॉल्यूम को उठाओ, एक्शन, तो यहाँ पे आप इसको पर्टिकुलर इसका स्नैपशॉट क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो स्नैपशॉट क्रिएट करने के बाद आप इसको कहीं और जगह पे भी भेज सकते हो। तो स्नैपशॉट चैप्टर में हम इसके डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। तो अभी ये देख लीजिए EBS का क्या कंसेप्ट रहता है, जो हमने देखा कि उसके साथ अटैच रहता है। और जब तक आप EC2 इंस्टेंस रहेगा, मान लो आप डिलीट कर देते हो एक EC2 इंस्टेंस को, तो यहाँ पे क्या हो, फॉर एग्जांपल मैं इसको डिलीट करने या टर्मिनेट का बोलता हूँ, टर्मिनेट कर दो, तो यहाँ पे मुझे बोलेगा वो देखो डिलीट EBS कि EBS यू डोंट हैव द डिलीट ऑन टर्मिनेशन सेट टू ट्रू विल परसिस्ट आफ्टर इंस्टेंस इज टर्मिनेटेड। इसका मतलब क्या होगा कि मेरा जब इंस्टेंस डिलीट भी हो जाएगा, मेरा वॉल्यूम डिलीट नहीं होगा। यहाँ लिखा वॉल्यूम्स आर नॉट सेट टू डिलीट ऑन टर्मिनेशन, तो ये मेरा वॉल्यूम जो नया बनाया है ये यही पड़ा रहेगा। तो आपको जहाँ तो इसको मैन्युअली डिलीट करना पड़ेगा। उसके बाद सेकेंड टर्मिनेट पे बोलता है कि आपके पास एक इलास्टिक IP इसके साथ अटैच है, तो जो इसके बाद रिलीज़ आप करोगे, मतलब अगर रिलीज़ नहीं करते तो आपको चार्जेस पड़ेंगे। ठीक है ना, तो ये चीज़ बताता भी है डिलीट करने के टाइम पे कि आपको डिलीट कर उसको वॉल्यूम को रखना है या नहीं रखना है। ठीक है, तो ओके, तो EBS का कंसेप्ट कुछ और जो हमने अभी बात की है कि ये रॉ होता है बाय डिफ़ॉल्ट, इस डिस्क में कुछ नहीं होगा। तो आपको अगर उसमें कुछ मतलब करना है तो आपको यू हैव टू बिल्ड अप ओवर हियर, यू हैव टू क्रिएट ए पार्टीशन एंड यूज इट। दूसरा फिर क्या है, थ्रूपुट क्या है, थ्रूपुट इज ए सीक्वेंशियल ट्रांसफर रेट विच एन SSD और HDD विल मेंटेन कॉन्टीन्यूसली। मीन्स जब आप डेटा कॉपी करते हो तो वो कितने स्पीड पे कॉपी करता है, वो लिखा होता है ना 10 MB पर सेकेंड, 20 MB पर सेकेंड, तो वो होता है थ्रूपुट। ठीक है, तो उसकी कितनी थ्रूपुट है, कितना फास्ट उसमें कॉपी हो सकता है। सेकेंड होता है IOPS। IOPS होता है इट मेजर इन नंबर ऑफ IO ऑपरेशंस इन ड्राइव, कि कितने IO ऑपरेशन का मतलब होता है IO, इनपुट आउटपुट पर सेकेंड। इनपुट का मतलब क्या होता है, राइट करना, आउटपुट का मतलब होता है रीड करना। तो आप कितने उस पर्टिकुलर ब्लॉक पे जहाँ पे डेटा लिखा हुआ है, जहाँ आपको नया राइट करना है,
वो पर सेकंड कितने कर सकता है एट ए टाइम, ठीक है, तो वो आयोप्स बताता है। तो जब आप वॉल्यूम डिफाइन करते हो, नया क्रिएट करते हो, अभी देखो नया वॉल्यूम क्रिएट करो, तो यहाँ पे आप करते हो तो आयोप्स क्या है 300 बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। अगर मान लो 1 GB की आपकी डिस्क है 1000 GB की, ठीक है, तो आपको कितने आयोप्स मिलेंगे, तो वो यहाँ पे मेंशन है। अगर आप आयोथ 2 में यूज़ करते हो तो आपको कितने आयोप्स मिल सकते हैं उस पर्टिकुलर पे आप मेंशन कर सकते हो। मान लो आपको 30,000 आयोप्स चाहिए तो वो आपको मिल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उसकी लिमिट ज़्यादा है 256, तो आपको इतने आयोप्स मिल सकते हैं। मतलब इतना इनपुट, मतलब पर सेकंड इतनी रिक्वेस्ट वो हैंडल कर सकता है, ठीक है। इट डिपेंड्स अपॉन दैट, नहीं तो आपको पर्टिकुलर उतना वेट करना पड़ सकता है, परफॉर्मेंस स्लो हो सकती है आपके सिस्टम की। क्लियर? अभी ये मल्टीपल इनकी टाइप्स रहती हैं, GP1, GP2, GP3, कोल्ड स्टोरेज, ऑप्टिमाइज्ड, ठीक है। तो ये सभी डिफरेंट यूज़ केसेस पे यूज़ होती हैं। फॉर एग्जांपल आप यूज़ कर रहे हो ओरेकल, तो ओरेकल के लिए IO2 या IO3 यूज़ करते हैं, क्योंकि ओरेकल बहुत ज़्यादा IO इंटेंसिव डेटाबेस है, जहाँ पे कॉन्टीन्यूस डेटा राइट होगा, रीड होगा, ठीक है, तो आपको उसमें बहुत फास्ट चाहिए। सेम वे GP2 में आप वेब एप्लीकेशन, आप नॉर्मल कोई भी मोबाइल एप्लीकेशन उस पर रख सकते हैं, क्योंकि आयोप्स इतने नहीं चाहिए होते हैं। थ्रूपुट ऑप्टिमाइज हार्ड डिस्क यूज़ कर लेते हैं, जहां आपको बैकअप लेके रखना हो और कभी कभी यूज़ करना हो। और कोल्ड स्टोरेज तो टोटली आर्काइवल के लिए यूज़ होता है, जैसे आपने रख दिया और भूल गए, ठीक है, दैट टाइप ऑफ स्टोरेज, उसके लिए आप यूज़ करते हो। थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन उसका डिटेल डिफरेंस अगर आपको जानना है तो ये थोड़ा पुराना है। लेट मी ओपन द शीट, यहाँ पे जाइए, तो EBS वॉल्यूम GP2 वर्सेस GP3। तो अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे ये डिफरेंस है GP3 और GP2 में, कितना आयोप्स है, कितना मैक्सिमम परफॉर्मेंस है, क्या रहेगा मैक्सिमम थ्रूपुट। GP2 में इतना है, GP3 में ज़्यादा है, प्राइसिंग भी उस हिसाब से थोड़ा ज़्यादा रहेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कैसे आप उसको यूज़ करना है। और इसका एक डॉक्यूमेंटेशन है, मैं आपको दिखाता हूँ, होल्ड करना। हाँ, यहाँ पे, तो यहाँ पे आप सारे वॉल्यूम्स को एक साथ देख सकते हो, GP3, GP2, IO2, IO1, तो सभी में क्या डिफरेंसेस हैं, तो यू कैन रीड मोर अबाउट हियर, ठीक है। तो सभी डिस्क का क्या क्या यूज़ केसेस हैं, तो थोड़ा यहाँ पे आपको ज़्यादा आइडिया लग जाएगा। ओके, तो EBS स्नैपशॉट वी विल कवर अप टुमारो, तो आज का हम यहीं तक रखेंगे, सो दैट यू कैन चेक। मैं YouTube में अपलोड कर दूंगा और तुम्हें लिंक भेज दूंगा, ठीक है। लेकिन अपलोड होने के लिए इट विल टेक एटलीस्ट 3 to 4 आवर्स सब कुछ होने में, क्योंकि पहले वो इसको मैं क्रिएट करूँगा, देन इट विल अपलोड, और SD में अपलोड होगा, फिर नॉर्मल अपलोड HD में होगा, ठीक है ना, तो इट विल टेक टाइम। तो ये वॉल्यूम, इसमें देखो एक वॉल्यूम अभी भी बचा रहा, ये 15 GB वाला, तो अभी इसको मैन्युअली डिलीट करना पड़ेगा, क्योंकि इसके ऊपर ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं थी कि डिलीट ऑन टर्मिनेशन, तो ये वॉल्यूम भी हो गया डिलीट। अभी ये दोनों इंस्टेंसेस अगर मैं रिफ़्रेश करूँगा तो टर्मिनेटेड हो चुके हैं, ठीक है। अभी लास्ट में आपको इलास्टिक IP को रिलीज़ करना है, अगर नहीं करते हो तो ये चार्जेबल रहेगा, तो इसको एक्शन में जाओ, रिलीज़ इलास्टिक IP एड्रेस, तो ये भी चला गया आपके अकाउंट से, तो अभी नो चार्जेस। क्लियर? ठीक है, तो